تو آپ جا رہے ہیں؟ وہ یہ سوال ایک ہفتے سے دن میں 100 مرتبہ سن رہا تھا۔ آخری نظر بیگ میں سلیقے سے پڑے کپڑوں پر ڈال کر وہ بیگ بند کرتا کھڑا ہوا۔ رخ موڑ کر کشن پر بیٹھی 18 سال لڑکی کو دیکھا۔ کتنی مرتبہ پوچھو گی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، نہ اس لیے اب کبھی اچانک کہیں نہیں گئے، بلکہ اتنی دور کبھی بھی نہیں۔ لہجے میں شکوہ بھی تھا اور اس کے جانے کا غم بھی۔ واپس آ جاؤں گا، تم پریشان مت ہو۔ چند لمحے خاموشی میں سرکے تھے۔ میں نہیں جا سکتی؟ ہولے سے سوال کیا گیا تھا۔ موبائل سے سر اٹھائے اس نے فجر کی جانب دیکھا۔ اس کے سوال پر وہ مسکرایا تھا۔ اگلی مرتبہ ہم سب اکٹھے چلیں گے۔ متوقع جواب پر فجر نے آنکھیں گھمائے سر ہلا دیا۔ کشن سے اٹھتی ہوئے اس کے قریب آئی۔ وہاں سب کو سلام کہیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ مجھے ان سب سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ فجر کے اشتیاق پر وہ موبائل سائڈ پر رکھتا ہنس دیا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی پیغام؟ ہاتھ سینے پر باندھے پوچھا۔ اور میرے ساتھ فیس ٹائم پر آنا ہے، میں ان کا گھر اور ان سب کو دیکھوں گی۔ جواب میں سر ہلایا گیا۔ وہ تمہارا بھی گھر ہے؟ ہاں، جہاں میں کبھی نہیں گئی۔ منہ بنائے شکوہ کیا تھا۔ میں جا رہا ہوں نا، واپس آ جاؤں تو سب ساتھ میں چلیں گے۔ نظر اس کے بیگ پر رکھے اس نے سر ہلا دیا۔ آ جاؤ، موم ڈیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ فجر کو اپنے بازوں کے کسار میں لیتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تیزی سے ہاتھ چلاؤ شمی، جتنا کھاتی ہو اتنا لگاؤ بھی ذرا۔ نگینہ کی آواز پر صحن میں جھاڑو لگاتی شمی نے منہ بسورا تھا۔ بس میرے کھانے پر نظر رکھنا آپ بیگم جی، آگے ہی مجھے کمزوری ہو گئی ہے۔ اتنی بھاری بھرکم کمزوری پر نگینہ نے آنکھیں نکالے سے دیکھا تھا، جس پر سیدھی ہوتی وہ تیزی سے ہاتھ چلانے لگی تھی۔ مشک کہاں ہے؟ بلاؤ اسے ذرا میرے پاس۔ نگینہ کے حکم پر جھاڑو دیتی شمی ہاتھ دائیں جانب قطار میں بنے کمروں کی جانب بڑھ گئی۔ دوسرے کمرے کا دروازے پر دستک دیتی وہ اندر داخل ہوئی۔ عین متوقع مشک بی بی بیڈ پر پڑی گہری نیند میں اونگ رہی تھی۔ دوپٹہ آدھا بیڈ پر اور آدھا زمین کو سلامی دے رہا تھا۔ روشن دان کے باوجود کمرے میں گہری رات کا سما تھا۔ بنا کسی تکلف کے شمی نے کمرے کی ساری روشنی جلا کر بیڈ پر پڑی زندہ لاش میں حرکت پیدا کر دی تھی۔ مشک بی بی اٹھ جائیں جی، باہر صبح کے بعد دن نکل آیا ہے۔ اس کے سر پر کھڑی وہ بول رہی تھی۔ دن کے بعد شام بھی آئے گی، لیکن اس سے پہلے تم میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ ہاتھ مار کر دوپٹہ اپنی طرف کھینچ کر آنکھوں پر رکھا تھا۔ نہیں جی، نگینہ بیگم نے سختی سے بلانے کا کہا ہے۔ اس کا نام بھی شمی تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، میں آتی ہوں، وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولی تھی۔ سر نفی میں ہلائے شمی نے اس کی درخواست کو خارج کر دیا۔ آپ اٹھ کر میرے ساتھ ہی چلے، مجھے دوبارہ چکر ضرور لگوانا ہے۔ صبر کا پیمانہ بس یہیں تک تھا۔ جواب لربیز ہو چکا تھا۔ دوپٹہ زور سے پھینکتی وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ الجھی ہوئی زلفیں اور آنکھوں میں نیند کے ڈورے۔ ان پر غزلیں لکھنے والے شاعر کبھی مشک بی بی کو ایک نظر دیکھ لیں تو اپنی غزلیں سمندر میں بہا دیں۔ نہیں، اب اتنی بھی خوفناک نہیں تھی، بس پکی نیند سے بی بی کو جگا دیا گیا تھا۔ محبت، مجھے ایک خون معاف ہوتا تو میں تمہاری زبان کا کرتی شمی، خوفناک تیور لیے وہ بولی تھی۔ رتی تو کچھ بھی نہیں، جتنا اثر شمی نے لیا تھا۔ اب اٹھ ہی گئی ہیں تو ساتھ چلیں بھی چلیں۔ بی جان کمرے سے باہر آ گئی تو سب کی شامت آ جائے گی۔ آج کل وہ ویسے بھی حویلی کے ہر ایک زیرو کو کام کرتا دیکھنا چاہتی ہیں۔ میں نے یہ اپنی شکل دھونی ہے اور یہ بال کو سمیٹنا ہے، اس لیے تم اپنی شکل گم کرو، میں خود آ جاؤں گی باہر۔ اپنا چہرہ بالوں کو پکڑے باقاعدہ شمی کو دکھایا تھا۔ مزید بحث کیے بغیر وہ سہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ سونے بھی نہیں دیتے یہ لوگ، ابھی 12 ہی تو بجے ہیں۔ بالوں کو دونوں ہاتھوں کی مٹھی میں لیے وہ اندر ہی اندر چیخی تھی۔ پاؤں پٹکتی دوپٹہ بیڈ پر پھینکے وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ آئیے آئیے، اٹھ گئی ملکہ کوثر، یا ابھی اور نیند لینا باقی تھی؟ بی جان کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پر وہ منہ بناتی ان کے قریب آ کر زور سے گلے لگائے انہی کے پاس بیٹھ گئی۔ سبزی بناتی نگینہ نے سر نفی میں ہلائے اپنے انعام کو دیکھا تھا۔ ناشتہ کر لیں، اس کے بعد تو نے شمی کے ساتھ مل کر حسان کے ساتھ والا کمرہ سیٹ کرنا ہے۔ بی جان کے حکم پر وہ جمائی روکتی حیرانی سے مڑی۔ شمی کو تو پیسے ملتے ہیں کام کرنے کے، میں کس خوشی میں اپنی جان پر ظلم کروں؟ مشک صرف کمرہ سیٹ کرنا ہے، کمرے پر لینٹر نہیں ڈالنا۔ نگینہ کے
तनवीर लहजे का इतना सा भी असर लिए बगैर वो शम्मी के हाथ से नाश्ते की ट्रे लिए पाँव पसार कर बैठ गई। वैसे कमरा किस लिए सेट करना है? नवाला मुंह में डालती वो बोली। ओ भी जान, कहीं दादा जान से लैदगी तो नहीं अख्तियार कर लिया आपने? किसी के भी जवाब से पहले ही वो खुद ही बोल गई थी। मामूल के मुताबिक नगीना ने अपनी बेटी की दानश्वरी पर सर लाया था। दिल करता है मुश्क तेरी सोच पर अशश करो। हाँ हाँ ज़रूर करें। चाय की चुस्की लेती वो हंसकर बोली। आरिफ भाई का बेटा आ रहा है कल कनाडा से। नगीना की बात पर एक लम्हे के लिए रुकती वो कंधे चाय फिर से नाश्ते की जानी मतवज्जो हो गई। मेरा पोता पहली मर्तबा अपने घर आ रहा है। मेरा बस चले तो मैं सारी हवेली सजा दूँ। बीजान की इमोशनल टून सुनती वो नाक चढ़ाए खाने पर ही लगी रही। सारी हवेली मंजो तो दी है, सारी हवेली साफ तो कर दी है शिमी ने, देखें तो बेचारी का आधा वजन भी नहीं रहा। पास से गुजरती शिमी ने अपने गम में सर हिलाया था। मुश्क, मैं तुझे पहले ही समझा रही हूँ, जब तक वो यहाँ रहेगा खबरदार कोई उल्टी सीधी हरकत की। हाथ झाड़कर ट्रे साइड पर रखे वो सीधी हुई। वो कनाडा से यहाँ मेरी हरकतें देखने नहीं आ रहा बीजान, बेफिक्र हैं आप। दुपट्टा लापरवाही से कंधे पर डालती वो खड़ी हुई। शिमी के साथ जाओ, कमरा ठीक से तैयार करना। नगीना के हुक्म पर चारों न चार सा हिलाते वो नए आने वाले मेहमान की जय पना की जानी बढ़ गई। मुश्क बीबी मोबाइल छोड़कर थोड़ा सा हाथ पलड़ा भी मरवा ही दें। फर्नीचर्स पर कपड़ा रगड़ती शिमी ने मुंह बनाए मोबाइल पर मसरूफ मुश्क को देखा। कब से कब से तुम्हें गाइड कर रही हूँ, इतना काफ़ी नहीं है क्या? चलो आप जल्दी से ख़त्म करो, मुझे और भी काम है। इतनी बड़ी मदद पर शिमी का वाकई दिल किया था वो रो दे। मजीद कुछ बोले वो अपने काम पर लग गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मुश्क ने सर उठाए। अंदर आने वाले को देखा नहीं, बिल्कुल आने वाली को, बल्कि आने वाली को। मुझे तो ये सुनकर फालिज पड़ने वाला था कि मुश्क कमरा साफ कर रही है। शुक्र है मौला का मैं गलत थी। अदन की बात पर वो दांत निकाले खड़ी हुई। बस मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे तुम सब अल्लाह को प्यारे हो जाओ। अदन ने हाथ झलाते हुए बात को हवा में उड़ाई थी। इतनी तैयारियां क्यों वैसे? शिम्मी की जोरों शोरों की सफाई देखती वो बोली। कनाडा से गोरा आ रहा है। गोरे की आवाज़ पर शिम्मी ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। हैं, सच्ची में गोरा है क्या? शिम्मी के पुरजोश लहजे पर मुश्क ने आंखें छोटी किए से देखा था, जिस पर सर हिलाती वो काम पर लग गई थी। गोरा मतलब? अदा ने ना समझे से पूछा। मोहतरम हमदान आरिफ तशरीफ ला रहे हैं हमारे से गरीब खाने में। बाजुओं को खोलकर जोर से झुलाया था। ओह, आरिफ मामू का बेटा? बिल्कुल वही। खैरियत से आ रहा है? अदन थी, सवाल तो होने ही थे। बीजान के सामने पूछना, ऐसा जवाब देंगी कि घर से बेघर मालूम होगी। वैसे रमज़ान गुजारने आ रहा है, शायद ईद भी यहीं ही करे। लापरवाही से बताया गया था। अदा ने सर हिलाया था। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ दिखाने आई थी। एकदम से पुरजोश अंदाज पर मुश्क ने सवालिया अंदाज में से देखा। रमज़ान ऑफर लगी है। मोबाइल इसके सामने किए कपड़ों की कलेक्शन दिखाई। मुश्क के चेहरे पर बहार के सारे फूलों का रंग आया था। हाय अल्लाह, तुम्हें जुड़वा बच्चे दे अदन। मोबाइल अदन के हाथ से पकड़ती वो कुर्सी पर वर्जमान हो गई। सर हिलाती अदन इसके साथ बैठती कपड़ों को छानने में लग गई। मेरा भतीजा कल पाकिस्तान अपने घर पहली मर्तबा आ रहा है, मगर मजाल है जो किसी ने आती ज़ुबान से भी इस बारे में जिक्र किया हो। जिनत बेगम हूँ और शिकवे ना हो जिनत बेगम हो और शिकवे ना हो, कोई बात नहीं बन रही। 2 दिन पहले ही अपने दादा को फ़ोन करके उसने बताया था। तस्बीह के दाने गिराती भी जान लापरवाही से बोली थी। 2 दिन में पूरे 48 घंटे होते हैं, इसमें से चंद सेकंड निकाल कर मुझे बता दिया जाता तो कोई गूंगा ना हो जाता। हाथ हिलाती वो सख्ती से बोल रही थी। वो अलग बात है, इस सख्ती का असर कोई लेता ही नहीं था। क्यों? तूने ढोल बजाने थे या घोड़ियाँ नचवानी थी जो तुझे खबर देते? जब भी दहलीज पर कदम रखती है एक शिकवा तैयार होता है तेरे पास। अगर वो जीनत बेगम थी तो ये बीजान थी, इनकी अम्मा जान। मुंह बनाते वो रुख मोड़े नगीना की जानिब मुड़ी। दरवाजे के साथ दरवाज़ा जुड़ा है। नगीना, तुमने भी नहीं बताया। अब की बार निशाना नगीना को बनाया था। आपका तो फिर दरवाज़ा अलग है। मैं इस घर के अंदर रहती हूँ, मगर मुझे आज पता चल रहा है। बुलंद आवाज़ में अपनी बात कहती वो जिनत के साथ ही चारपाई पर बरजमान हो गई। अम्मी, पहले तो कभी आपकी ज़ुबान से भतीजे का जिक्र नहीं सुना, अचानक ही मोहब्बत फूट गई है। अदन की बात पर जहाँ मुश्क हंसी थी वहाँ ही जिनत ने अपनी बेटी को घुरी से नवाजा था। मैं किसी से क्या शिकवा करूं, मेरी अपनी औलाद ही नहीं ठीक। दहाई दी गई थी।
अदन ने लापरवाही से माँ का डायलॉग सुना था। अब वो आ रहा है तो सब इसके साथ इज्जत और मोहब्बत से पेश आए। बीजान ने टेक लगाए बोला, क्यों नहीं बीजान, हमारा अपना बच्चा है वो, हमें तो खुशी है कि अब सब ठीक हो गया अब्बा जान, और आपकी नाराज़गी ख़त्म हो गई। नगीना की बात पर जीनत ने इस बात में सर हिलाया था। धक्के की नाराज़गी थी अम्मा की भी, जीनत बोली थी। बीजान ने कड़े तेवरों से इन्हें देखा था। लड़कियां उठकर जा चुकी थी, अब सिर्फ वही तीनों नफूस बाहम गुफ्तगू थी। जब औलाद को पाल पोस कर जवान करें वह अपनी मनमानी करने लगे तो माँ बाप की नाराज़गी वजह होती है। हमदान और फजर की खातिर इसे माफ़ किया है, वरना कभी दिल नरम ना पड़ता। लहजे में शिकवा भी था और नमी भी। तहरीम अच्छी शरीके हया साबित हुई आरब भाई के लिए अम्मा जी। मुसलमान भी हो गई और बच्चों को भी अपनों से बेगाना नहीं किया। बेचारी एक ही मर्दा आई पाकिस्तान और आपके माथे की सलवटें नहीं गई 4 हफ्ते। जिन्नत की बात पर बीजा ने लापरवाही से सर हिलाया था, जैसे कह रही हूँ ठीक है, अपनी माँ को मत बता। मैं चलती हूँ, जब हमदान आने वाला हुआ तो बता दीजिएगा मेहरबानी फरमाकर। दुपट्टे के पल्लू को झटका देकर सर पर टकाती वो हवेली से मुंसलिक दरवाजे से अपने घर की जानिब बढ़ गई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देता वो अंदर दाखिल हुआ। सामने बेड पर वो दोनों आलती पालती मारे बैठी मोबाइल पर कुछ लिखने देखने में मसरूफ थी। पर्दे के पीछे होने के बायस खिड़की से सूरज की रोशनी सीधी कमरे में पड़ रही थी। कुछ लम्हे खड़े होने के बाद भी किसी ने इसके आने का नोटिस नहीं लिया था। मुश्कबाजी आवाज़ पर मुश्किल सर उठाए दरवाजे पर खड़े अपने से 1 साल छोटे भाई को देखा। ट्राउजर शर्ट में मलबूस वो काट में मुश्किल से 3 साल बड़ा ही था। बाल गीले होने के बायस माथे पर पड़े थे। तुम आ गए यूनिवर्सिटी से? मुश्क के बेतुके सवाल पर उसने गहरी सांस भरी थी। नहीं, अभी रास्ते में हूँ। चाय बना दें, सर में दर्द हो रही है। इस सब के दौरान अदन बिल्कुल गैर मुतल्लिका बनी मोबाइल पर मसरूफ थी। हाय मेरा मेहनती काका, जाओ तुम कमरे में, मैं तुम्हारे लिए चाय वहीं ही लाती हूँ। मुश्क राहिल अगर किसी को ना नहीं करती थी तो वो हसान राहिल था, इसका प्यारा भाई। हाँ वो अलग बात है, अगर मजाज अच्छे ना हो तो हसान भी नज़रअंदाज हो जाता था। शुक्रिया। एक गहरी नज़र सर मोबाइल के अंदर घुसाया अदन पर डालता हुआ दरवाजे से ही वापस चला गया। दुपट्टा गले में डालकर बेड से उतरे वो अदन की जानिब मुड़ी। तुम पियोगी चाय? नहीं, मैं घर जा रही हूँ, शाम के खाने में अम्मी का हाथ बटाऊंगी। हरम स्कूल से आकर बेहोश हो चुकी होगी। सर हिलाकर मुश्क ने चप्पल पाँव में रिश्ते बाहर की जानिब राह ली। अपना ख्याल रखना और वहाँ सबको हमारी तरफ से सलाम कहना, ख़ास तौर पर बीजान और अब्बा जान के साथ वक्त गुजारना। वो तुम्हारे आने पर बहुत खुश हैं। एयरपोर्ट की रौनक में बेटे को शानों से थामे वो समझा रहे थे। पास खड़ी तहरीम और फजर इन्हें मुस्कुरा कर देख रही थी। आप फिक्र मत करें, सब अच्छा रहेगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अपनी बात कहकर अलविदा तौर पर सबको अपने साथ लगाया। मैं तुम्हारे जाने पर उदास हूँ, लेकिन इत्मीनान भी है कि तुम अपने घर जा रहे हो। अंग्रेजी लबो लहजे में उर्दू बोलती तहरीम की बात तो सुनता वो मुस्कुरा दिया। अपने दोनों बच्चों के साथ आरिफ ने अपनी अंग्रेज़ बीवी को भी अच्छी खासी उर्दू सिखा दी थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इनके लबो लहजे में अंग्रेज़ी का भी अक्स था, जबकि हमदान और फजर बिल्कुल ठीक उर्दू बोलते थे। एक मरतबा सबको अलविदा कहता हुआ बैग का हैंडल थामे एयरपोर्ट के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया। रमज़ान शुरू होने वाला है, काश अल्लाह शैतानों के साथ स्कूलों को भी बंद कर दिया करें। नोटबुक ज़ोर से बैग में पटकती मुंह के उल्टे सीधे जाविये बनाए वो साथ साथ दहाइयाँ भी दे रही थी। क्या हो गया है बहन? कमरे में दाखिल होती अद्दा ने इसके तेवर देखते पूछा। यार बाजी, कुछ दिन में रमज़ान है और इन जालिमों ने टेस्ट रख दिए हैं। बंदा अब आखिरत के टेस्ट की तैयारी करे या इनके टेस्टों को रोए बैठकर। जिप जोर से बंद करती बैग को पटकने के अंदाज में टेबल पर रखा अदन इसकी अंदाज पर हंसी थी। दोनों की तैयारी करो, वैसे भी मौसम इस मरतबा गर्म नहीं है, रोज़ा अच्छा गुजरेगा। हरम ने सर हिलाया था। अम्मी किधर हैं? वो बीजान की तरफ हैं। आरिफ मामू का बेटा आ रहा है आज कनाडा से। वो ईद करने कनाडा से आ रहे हैं और यहाँ हमारी नानी के घर की दीवार भी सांझी है। सर झटकती वो बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गई। तुम पर अम्मी का साया हो गया है, हर बात पर शिकवा। मसनूई मसनूई संजीदगी से अद्दा ने इसे डांटा था। ठीक करती हैं अम्मी, कम से कम शिकवों से दिल की भड़ास तो थोड़ी बहुत निकल ही जाती है। आपके दान निकाले, वो बोली थी। अद्दा ने सर नफी में हिला दिया। मैं जा रही हूँ बीजान की तरफ, तुम चलोगी? दुपट्टे का पल्लू सर पर टकाकर वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। बाद में जाऊंगी, अभी मुझे एक और टेस्ट तैयार करना है। इसकी बात पर सर हिलाती अदन दरवाजे से बाहर निकलती हवेली के दरवाजे की जानिब बढ़ गई। मेरा हमदान
मेरा हमदान, मेरे जिगर का टुकड़ा। हमदान को सीने से लगाए वो कितनी देर यूं ही खड़े रहे थे। कैसी हैं आप? वो ज़रा सा झिझक कर बोल रहा था। तुम्हें देखकर बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। मुझे देखकर तो कभी आप ऐसे ठीक नहीं हुए दादा जान। हसान की मसनूई खूबी लिए लहजे पर हमदान में सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैली थी। हट जाएं, अब मुझे भी मिल लेने दे अपने पोते से। दादा जान का बाजू पकड़कर पीछे करते हमदान का माथा थाम कर चूमा था। वो पाकिस्तान में अपनों की मोहब्बत को खुशी और हैरानगी के मिले जुले तासरात के साथ वसूल कर रहा था। एक एक रिश्तेदार से मिलकर वो अब बीजान के पहलू में बैठा इनके सवालों के मुख्तसर जवाब दे रहा था। बाकी घर वालों को भी साथ ले आते, वो भी आएंगे जल्द ही। हाँ, जब बूढ़ी माँ कब्र में पहुंच जाएगी फिर आएंगे बीजाने और इनके इमोशनल ड्रामे। डैड और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, इसलिए हम दोनों में से किसी एक का होना ज़रूरी है वहाँ पर। मैं वापस जाकर इन्हें ज़रूर भेजूंगा। इनका हाथ थामे वो नरमी से बोला था। नगीना और ज़ीनत वो इसकी वजह तो नरम मिजाजी दिखती फूले नहीं समा रही थी। अदन इन सब को हाल में छोड़ती मुश्क के कमरे की जानी बड़ी। हैंडल मरोड़ कर कमरे में दाखिल होती उसने गहरे से ज़रा गहरा सांस भरा था। दुनिया में सब कुछ तरतीब में आ जाए जिस दिन मुश्क बीबी वक़्त की पाबंदी शुरू कर ले। कमरे की सारी बत्ती जलाकर अदन ने इसके सर तानी चादर जोर से खींची थी। घर में इतना हैंडसम कैनेडियन बंदा आया है और तुम यहाँ मरी पड़ी हो। मुश्क के शानों से थाम कर उससे झंझोड़ा गया था। इतने खतरनाक झटके पर वो लम्हे के हजारवें हिस्से में जाकर अदन को नासमझी से देख रही थी। नहीं पहचाना? मैं हूँ अदन, तुम्हारी पप्पो की बेटी। ये यहीं साथ वाले घर से आई हूँ। इसके अजनबी अंदाज पर अदन ने अपना पूरा तारुफ करवाया था। आंखें जोर से बंद करके खोलती वो उठकर बैठी। बिखरे बाल और सदाबहार आंखों में नींद के डोरे। मुश्किल शख्सियत के दो अहम पहलू। इतनी गहरी नींद में ऐसे कौन जगाता है अदन यार? मेरा दिल बंद होने वाला था। बालों को समेट कर जूड़े में बंदे गर्दन पर छोड़ा था। दिल को गोली मारो, बाहर चलकर देखो हमदान आरिफ और द होल सम पर्सनैलिटी। अदन के झूम कर बताने पर वो सरनफी में हलाए बेड से उतरी। इस वक्त तुम मुझे जितनी जहर लग रही हो, इससे पहले कि मैं कोई जहर अमेज अल्फाज बोलूं, अपनी शक्ल गुम कर लो। अपनी बात कहकर अदन का जवाब सुने बगैर वो वॉशरूम का दरवाजा ठाक के साथ बंद करके खुद भी अंदर बंद हो गई थी। हसान इसे लेकर हवेली की छत पर आया था। बीजा ने लाड प्यार में इतना खिला दिया था कि वो बेचारा 2 दिन तक खाने के बारे में ना सोचता। आप पहले भी आ चुके हैं पाकिस्तान? हसान के सवाल पर हमदान ने इसे देखा। हाँ, इस वक्त मैं छोटा था, यही कोई 8-9 साल। हसान ने सर हिलाया था। एक खामोशी सी थी। खूनी रिश्ता होने के बावजूद फासलों के बायस कुछ झिझकती। गला खंखार कर हमदान ने इसे मुखातिब किया। दीवार तो गिरानी ही थी, इसलिए इसलिए वो तो आया था यहाँ। तुम क्या करते हो? मेरा मतलब पढ़ाई या जॉब वगैरह? मैं पढ़ता हूँ, यूनिवर्सिटी का आखिरी साल चल रहा है। हसान ने जवाब पर इसने सर हिलाया था। हसान के जवाब पर इसने सर हिलाया था। गुड। और बाकी सब घर वाले? मतलब क्या हॉबीज हैं सबकी? कुछ बताओ सबके बारे में। हसान इसके सवाल पर धीरे से हंस दिया। हंसे क्यों? पता नहीं, आपके अंदाज पर शायद। खैर, मैं आपको बताता हूँ। अब्बू और दादा जान का ज़्यादा वक्त ज़मीनों और डेरे पर गुजरता है। बी जान अपनी तस्वीर पकड़कर सब पर हुक्म चलाती हैं, लेकिन है बहुत क्यूट। अपनी बात कहता वो हंसा था। हमदान भी मुस्कुरा दिया। मेरी अम्मी बस खाने बनाने और हवेली को संवारने में लगी रहती है। मेरी बाजी हैं, पढ़ाई से फारिग होकर अब नींद पूरी करती हैं। जीनत पप्पो को आप हर वक्त शिकवे शिकायतें करते हुए पाएंगे, लेकिन प्यार बेहिसाब करती हैं हम सबसे। अजीज फूफा सऊदी अरब होते हैं। पहले फूफो भी साथ होती थी, लेकिन इनका वहाँ दिल नहीं लगा, इसलिए वापस आकर हमारे साथ मकान खड़ा कर दिया। और इनकी 2 बेटियां हैं, अदन और हुरम। अदन भी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी है। हुरम मैट्रिक की स्टूडेंट है। सबका तारुफ करवा कर वो चुप हो गया। हमदान ने इतनी तफसीली तारुफ पर खिलकर मुस्कुरा दिया। मैं सबसे मिल चुका हूँ सिवाय तुम्हारी बाजी के। वो यकीनन अपने कमरे में या सो रही होंगी या कोई नई किताब पढ़ रही होंगी। हमदान ने कुछ हैरानगी में कंधे उंचाए थे। जहाँ पूरा खानदान इससे मिलने पहुंचा था, वहाँ घर के फर्द अपने कमरे से नहीं निकली थी। वहाँ घर की फर्द अपने कमरे से नहीं निकली थी। हैरत है। आपका खाना हजम हो गया तो चलते हैं नीचे। हसान की आवाज़ पर इसने सर हिलाया था। खाना तो कल तक शायद हजम ना हो, लेकिन फिर भी चलते हैं। मुस्कुरा कर कहता हुआ हसान के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुंचकर नगीना की आवाज़ पर हसान हमदान को इसका कमरा दिखाता आगे चल दिया। एक नज़र खाली राहदारी पर डालकर हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा ही था जब एक कमरा छोड़कर अगले कमरे का दरवाज़ा खोलकर कोई बाहर आया निकला।
हमदान रुका था, दुपट्टे से लड़ते झगड़ते बिला आकर कंधे पर डाले मुश्क बाहर निकली थी। अदन के जाने के बाद वो कमरे से बाहर जाने का इरादा तय करती किताब खोलकर बैठ चुकी थी। जानती थी इस वक्त मरकज़ हवेली बीजान का पोता बना होगा। बीबी जी, आवाज़ पर हमदान ने सामने से आती शिमी को देखा जो गालिबन इस लड़की को बुला रही थी। ओ बीबी जी, शिमी की दोबारा दहाई पर मुश्किल ने कड़े तेवरों से देखा था। आगे भी बोल चुको अब, इतना चढ़ा हुआ अंदाज। हमदान ने हैरानगी से लड़की की पुश्त को देखा जहाँ बाल आधे जुड़े और आधे जुड़े से नीचे लहर रहे थे। बोलने ही वाली थी वो, नगीना बेगम कह रही हैं कि खाना खा ले। शिमी भी शिमी थी फिर, वही खाने जा रही थी। तुम चाय रखो मेरे लिए, शायद दर्द है सर में। उफ, क्या अंदाज था। हमदा ने बामुश्किल हैरानगी में अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। वो अब दोनों राहदारी में चलती इससे दूर जा रही थी। ज्यादा सो लिया होगा, अपनी जुबान का खून करवा लोगी किसी दिन तुम। शिमी उंगली से वार्न करती वो बड़े से पिलर के पीछे गायब हो गई। हमदान वही खड़ा इस मखलूक को सुनता रह गया। एक मर्तबा इसका अंदाज याद करता वो दरवाज़ा खोलता हंस दिया। इंटरेस्टिंग, तुम हमदान से मिली हो? नगीना के सवाल पर खाना खाते हुए इसने लापरवाही से सर नफ़ी में हिला दिया। कितनी गलत हरकत है मुश्क, क्या सोचेगा वो, कैसे लोग हैं इसके घर के। मुश्क ने पानी का घूंट बढ़ते हुए आंखें घुमाई थी। हाँ, वो तो बैठा मेरे बारे में ही सोच रहा होगा ना भाई, इसे पता ही नहीं होना ये इधर एक और वजूद भी है इस घर में जो हर वक्त पड़ा ऊँगता ही रहता है। हसन की आवाज़ पर वो मुड़े बगैर ध्यान खाने की तरफ लगा चुकी थी। वैसे बाजी क्या मिलता है इतना सोकर, इतना चढ़कर, इतना इतना पढ़कर, इतना खाकर। मुश्की साथ वाली कुर्सी पर बैठता वो बोला, सुकून। एक लफ्जी जवाब था जिसकी उम्मीद हसन को थी। अच्छा खैर छोड़े, चाय बना दे मेरे लिए और हमदान भाई के लिए भी। मुंह में जाता नवाला हवा में ही ठहरा था। आंखें वाह किए हसन को देखा। ये हमदान भाई के लिए किस खुशी में भाई पर जोर दिया था। मेहमान हैं यार, शिमी मेरे लिए बना रही है, वो अपने हमदान भाई को दे आओ। अपने और तुम्हारे लिए मैं रखती हूँ। रुका हुआ नवाला मुंह में डाला था। चाय का कप टेबल पर रखती शिमी वापस मुड़ गई थी। हसन ने कप आगे बढ़ाकर कप थामा। ये मैं ले रहा हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी का काम करना है, आप हमदान भाई के लिए बना दीजिएगा। चाय का बड़ा सा सिप लेते वो मुश्क का रंग बदलने से पहले ही निकल गया। खाना खत्म करती वो पैर पटक कर चाय बनाने की खातिर किचन की जानी बढ़ गई थी। चाय बनाकर कप में उंडेल कर वो शिमी की जाने मुड़ी। ये दे आओ। अपना कप पकड़कर कुर्सी संभाले इशारा ट्रे की जानिब किया। ट्रे थामे शिमी किचन से निकलने को थी जब मुश्क ने दोबारा से पुकारा, तुम रहने दो, मैं दे आती हूँ। कुछ सोचकर बोलती वो कप टेबल पर रखकर ट्रे शिमी के हाथ से थामे किचन से निकल गई। हमदान के दरवाजे पर रुककर इसने हल्की सी दस्तक दी। कोई जवाब न पाकर मुश्क ने अब की बार जोर जोर से दस्तक दी थी। जवाब नहीं आया था। दांत पीसती हुए दरवाजे का हैंडल घुमाकर अंदर दाखिल हुई। कमरा खाली था मगर वॉशरूम का बंद दरवाजा देखते ही अंदाजा हुआ था। ट्रे ड्रेसिंग पर रखकर वो बेड पर पड़े खुले बैग पर सरसरी नजर डाले बाहर निकलने को थी जब वॉशरूम का दरवाजा खुलने पर रुकी। ट्रैक सूट में मलबूस हल्के नम बालों के साथ दरवाजा अपने पीछे बंद करता वो भी रुका था। हल्के बाल हल्के से जोड़े में मुकी थे मगर कुछ लटे आदत से मजबूर गर्दन पर झूल रही थी जबकि दुपट्टा हमेशा की तरह कंधे पर आसान के तौर पर टिकाया गया था। हमदान ने हुलिये के बाद इसके चेहरे की जानिब देखा। हुलिया एक तरफ था मगर थी तो खूबसूरत, गंदमी सी रंगत, तीखे नकूश और नाक में लौंग, स्याह बड़ी आंखें जो इस वक्त हमदान पर टिकी हुई थी। मेरा दीदार हो गया हो तो ये यहाँ चाय रखी है। ज़बान भी खासी तीखी थी। हमदान ज़रा हैरानगी से आगे बढ़ा। शुक्रिया, लेकिन मैं चाय नहीं पीता। सादा सा जवाब था मगर मुश्क बीवी को सादी बातें कहाँ पसंद थी। तो फिर बनवाने का क्यों बोला था? हाथ बांधे पूछा गया था। मैंने किसी से नहीं कहा। वो अब मुश्क के सामने खड़ा था। मुश्क ने ज़रा सरसरी नज़र में इसका जायज़ा लिया था। वो गोरा तो किसी जावे से नहीं लगता था। रंग साफ था मगर नैनकुश से वो खालस देसी लगता था। इस पर हल्की सी चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी से तो बिल्कुल यही का मालूम हो रहा था। बिना कुछ बोले ट्रे थामती वो बाहर जाने को थी जब इसकी आवाज़ पर मुड़ी। हमदान, आरिफ बाय द वे। हल्का सा मुस्कुराकर तारीफ करवाया था। मुश्क, राहिल। ओह, तो आप हसन की बाजी हैं। बाजी के माथे पर सलवटें आई थी। जी, यकलफ्जी जवाब था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता मुश्क कमरे से जा चुकी थी। सर नफ़ी में लाता वो खुले बैग की जानिब मतवज्जो हो गया। अस्सलाम वालेकुम दादा जान के कमरे में दाखिल होती वो आवाज़ बुलंद बोली। इस्लाम का जवाब वहाँ मौजूद हर नफूस ने दिया था। इधर ही होती है ना तू?
दादा जान के मीठे से तंज पर वो सोफे पर इनके साथ बर्जमान हो गई। मैं तो 24 सालों से इसी हवेली में भटक रही हूँ, अलबत्ता आपके चश्मे का नंबर शायद खराब हो गया है। मीजान के साथ बैठे हमदान ने इसके संजीदा लहजे में दिए गए जवाब पर बामुश्किल अपनी हंसी दबाई थी। ये लड़की हर मर्तबा सामने आकर हैरान करती थी। जवाब तो तैयार होता है तेरे पास। जी बी जान बोली थी। पोती किसकी हूँ? इसके जवाब पर बीजान ने एक ठंडी आह भरी। भला मुश्क भी कभी शर्मिंदा हुई थी? मुश्क ने बीजान के हाथों में दबा हमदान का हाथ देखा। दादी पोते का प्यार देखकर इसने आंखें घुमाई थी जो हमदान की आंखों से मुखफी नहीं रही थी। इन दोनों को नजरअंदाज करती हुई दादा जान के साथ दो तीन बातें करने के बाद उठकर बाहर की जानिब बढ़ गई। हमदान की नजरों ने दरवाजे तक इसका पीछा किया था। ये सबसे अलग है। नजरें वापस मोड़ते हमदान ने बीजान से कहा, अकलौती है, सबके लाड प्यार से जरा नकचड़ी हो गई है, जिद्दी तो भला की है। जरा सा हंसकर बीजान ने मुश्क बीबी की खूबियां बयान की थी। बिना मुस्कुराए हमदान ने सर इस बात में हिला दिया। जीनत पप्पो के आशाने में पहुंचकर इसने खामोश हाल को देखा। एक नजर खाली किचन पर डालता वो कमरे के बंद दरवाजे के आगे खड़ा हो गया। दस्तक पर चंद लम्हे बाद ही अदर ने दरवाजा खोला था। हसन को सामने खड़ा देखती हुए एक सेकंड के लिए हैरान हुई। कुछ ना बोलते देखकर अदर ने ही से मुखातिब किया, कोई काम था? जी वो पुप्पो का पूछना था, बीजान बुला रही थी। नजरें अदन के चेहरे पर रखे वो इसे खासा कंफ्यूज कर रहा था। अम्मी ज़रा काम से बाहर गई हैं, आएंगी तो बता दूंगी। इसके जवाब पर भी आसानी से ही देखता वहां खड़ा था। गहरी सांस भरकर अदन ने भी इसकी आंखों में देखा। क्या काम है हसन? ऐसे क्यों देख रहे हो? लहजे में उकताहट थी। मैं कैसे देख रहा हूँ? सवाल पर सवाल आया था। अदन ने दांत पीसे थे। जाओ हसन, मैं नहीं चाहती कि मैं तुमसे बिला वजह की दुश्मनी पालकर बैठ जाऊं। चले दुश्मनी का ही सही, कम से कम आप कोई वास्ता तो रखेंगी ना मुझसे? वो बिल्कुल साफ और संजीदा लहजे में बोल रहा था। अदन ने एक गहरी काटदार नजर इस पर डालते दरवाजा इसके मुंह पर बंद कर दिया। बंद दरवाजे को देखता हुआ सर गराए धीरे से हंस दिया। बंद दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी अदन ने आंखें जोर से मीचकर गहरी सांस भरी थी। पता नहीं कौन सा लम्हा था जब हसन के दिल में ऐसा ख्याल आया था कि वो बस सोच ही सकी थी। मुंह के टेढ़े मेढ़े जावे बनाती वो अम्मी के कदमों में बैठी थी। आज इसके बाल अम्मी के हाथों में आए थे, जिन पर वो दिल खोलकर सरसों का तेल उड़ेल रही थी। इतने प्यारे बाल हैं तुम्हारे, मगर मजाल है जो तुमने कभी इन पर तवज्जो दी हो। बंदा तेल लगाकर चुटिया बनाकर रखता है, मगर ना आवारा छोड़ रखा होता है। तेल लगाने के साथ साथ सलवतें भी लग रही थी। अम्मी ज्यादा भी ना लगाए, निकल ही ना सके बालों से। मुंह बनाते हुए बोल रही थी, अरसे बाद लगवा रही हो तो जरा सही से लगवाओ, और आज मत धोना बाल, एक दो दिन लगा रहने दो। वाह वाह, आप चाहती हैं मैं इन्हें तेल टपकते बालों के साथ रहूं? वैसे भी कल या परसों से रमजान शुरू हो रहा है। अरे हाँ, रमजान भी तो शुरू हो रहा है। तुम्हारे अब्बू के साथ एक चक्कर शहर का लगा आती हूँ, जरूरत की सब चीजें ले आऊंगी, तुम भी चलना साथ, आसानी हो जाएगी। तेल की शीशी बंद करती वो बोल रही थी। कमरे तक आते से आप बारिश वक्त चुटिया में मुकीम थे। रुख मोड़कर मुश्क इनके सामने बैठी। मैं घर का राशन लेने शहर तो जाने नहीं वाली, ईद की शॉपिंग हो तो तब बात है। नगीना को यही उम्मीद थी इससे। घर के कामों को मत देखना, तुम सुगड़ ना हो जाओ कहीं। सामने बैठी अपनी इकलौती बेटी को देखकर वो सरनफी में हिलाकर रह गई। मैं घर के कामों के लिए थोड़ी ना पैदा हुई हूँ अम्मी, एक ही जिंदगी है, खाओ पियो और सो जाओ। हाथ हिलाकर अपनी बात कहती वो खुद भी हंस दी। वो मुश्क थी और मुश्क ने कभी असर लिया, मुश्क ने कभी कभी मुश्क ने भी कभी असर लिया था। सनफी में हिलाती नगीना तेल की शीशी पकड़े कमरे से निकल गई। अम्मी के जाने के बाद दुपट्टे को कंधे पर डाले वो कमरे से निकलती अदन के घर की तरफ बढ़ रही थी जब सामने से आते हमदान को देखकर इसके कदम जरा से आस्था पड़े थे। सरसरी सी नजर डालकर इसे नजरअंदाज करते मुश्किल दुपट्टे का पल्लू एक कंधे से दूसरे कंधे पर जोर से लहरा कर रखा था। लहराते हुए दुपट्टे के पल्लू के कोने पर लगा कुमकुम किसी तमाचे की सूरत हमदान के गाल पर लगा था। आउच की आवाज पर मुश्क ने मुड़कर इसे देखा, जो गाल पर हाथ रखे रगड़े इसे ही देख रहा था। ये लहराने से पहले आगे पीछे देख लिया करो। संजीदा सा लहजा था मुश्क के दुपट्टे का। वही पल्लू इसके सामने किया। ये इसका कसूर है, मेरा नहीं। शर्मिंदा होना या माजरत ख्वाह होना तो मुश्क की किस्मत में ही नहीं था। बिना कुछ कहे गहरी और संजीदा नजर इस पर डालता वो वहीं से मुड़ गया। मुश्क ने हैरानी से इसकी पुश्त को देखा। इसने तो कुछ कहा ही नहीं। कंधे चाहती और राहदारी में आगे बढ़ गई। अदन डार्लिंग। अदन और हुरम के मुश्तरका कमरे में झांक कर जरा ऊंची आवाज में पुकारा। अदन तो नहीं थी, मगर यूनिफॉर्म में मलबूस हुरम को देखते हुए मुस्कुराती। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हुरम?
बेड पर दराज हुए को पुकारा था, जो गालिबन अभी स्कूल से आई हवा ले रही थी। सर उठाकर दरवाजे पर खड़ी मुझको को देखा। मैंने इनकार कर दिया। तो कौन सा, आपने वापस चले जाना है? कह तो ठीक ही रही थी, जो आप से पहले ही वो कमरे में दाखिल होती हुई उनके साथ बैठ गई। ठीक कह रही हूँ, पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? बेड के किनारे पर बैठे वो बोली। जा रही है, पहुंच से दूर होती नजर आ रही है अब। मुझको हंसी थी, हाथ बढ़ाकर उसके बालों को हल्का सा बिखेरा था। यूनिफॉर्म क्यों नहीं बदला अभी तक? हमदान भाई आए थे, इनके साथ बैठ गई थी। हमदान के नाम पर मुझको कुछ देर पहले हुई वारदात याद आई थी। किचन से आती अदन की आवाज़ सुनती वो सर हिलाकर किचन की जानिब चलती। ये हमदान क्यों आया था? अदन ने वापस इसे अजीब नजरों से देखा था। इसकी इकलौती पप्पो का घर है ये। ओह। अदन ने इसके सर पर हल्की सी चित्र लगाई थी। बाय बाय, आज तो किस कस की चुटिया हुई है लगता है। हाय हाय, आज तो कस की चुटिया हुई है लगता है। नगीना मामी के हाथ लगे हैं बालों में। अदन ने इसके तेल लगे बालों की चुटिया को देखकर हंसती बोली थी। अम्मी महीने में एक दो मरतबा मेरे बालों को वर्कआउट जरूर करवाती हैं। अपनी बात कहती अदन समेत वो भी हंस दी। दरवाजे की दस्तक पर बेड से उठते इसने दरवाजा खोला। सामने खड़ी नगीना इसे देखकर मुस्कुराई थी। जवाबन वो भी मुस्कुरा दिया। मैं और तुम्हारे चचा शहर जा रहे हैं रमजान के लिए, घर का कुछ सामान खरीदना है, तुम चलोगे? हमदान को देखती वो बोली थी। नहीं, मैं नहीं चची, आप जाएं, मैं फिर कभी चला जाऊंगा। आराम से इनकार किया था। कुछ चाहिए हो तो भी बता देना। जी शुक्रिया। नगीना मुस्कुराकर वापस मुड़ने को थी जब फिर से रुकी। ये गाल पर क्या हुआ है? लाल निशान को देखते उन्होंने हमदान से पूछा था। हमदान का हाथ गाल पर पहुंचा था। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही उठते बैठते। कंधे उचाकर बजाय लापरवाही से बताया। नगीना सर हिलाती वहां से चल दी। रात के खाने के बाद वो सब अपने अपने कमरों में आराम के घर से जा चुके थे। हमदान भूख न होने की वजह से अपने कमरे से बाहर ही निकला। लैपटॉप टांगों पर रखकर टांगे सीधी किए बेड के किनारे पर रखी थी। काम में गर्क वो बाहर से आती गैर मामूली आवाज़ों पर होश में आया। लैपटॉप साइड पर रखे वो उठने को था जब दरवाजे पर भी दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलने पर हसान का हंसता मुस्कुराता चेहरा नजर आया। रमजान का चांद मुबारक हो। हसान की मुबारकबाद पर वो कदरे हैरान हुआ था। रात के 10 बजे कौन सा चांद नजर आता है? ये पाकिस्तान है, यहाँ हलाल कमेटी को सुबह के 10 बजे भी चाँद नजर आ जाता है। हसान के संजीदा मजाक पर भी इसकी हैरानगी कम नहीं हो रही थी। हाल से आती आवाज़ों पर वो भी कमरे का दरवाज़ा बंद करता हसान के साथ हो लिया। हाल में सब इकट्ठे हुए अचानक नजर आने वाले चांद के बारे में गुफ्त शनीद कर रहे थे। चलो जो भी कहो, अब कल पहला रोज़ा है तो सहरी की तैयारी करके सोना। राहील अपनी जमाई रोकते हुए बोलकर कमरे की जानिब निकल गए। हमदान की नज़र सिंगल सोफे पर टांगे ऊपर करके बैठी मुझ पर पड़ी। आंखें नींद में डूबी हुई थी। नाना करने के बावजूद नगीना इसे घसीटकर शहर ले गई थी। सारा दिन राशन और घर का सामान खरीदने के बाद वो शाम में आते ही बेड पर तराश हो गई। जब चाँद नजर आ ही गया था तो मुझे गहरी नींद से उठाने की बजाय एक मरतबा सहरी में ही जगा देते। दुनिया वालों के अपने मसाइल थे और मुझ का इन सबसे मुख्तलिफ था। हमदान का सर खुद ब खुद नफ़ी में हिला था। तुझे तो अल्लाह ने सिर्फ नींद पूरी करने ज़मीन पर भेजा है और ये तो काम बड़ी खुश उसलूबी से सरअंजाम दे रही है। बीजान की मीठी इज्जत पर भी ज़रा सा असर लिए बगैर वो सोफे से उठती कमरे की जानिब जाने को थी जब बीजान की आवाज़ पर एकदम मुड़कर इसने पीछे देखा। बीजान इनके आगे झुके हमदान के गाल पर प्यार से हाथ फेरी थी। तेरे गाल पर किसने चमाट मारा है? चमाट पर हमदान झटके से पीछे हटा। नहीं ग्रैनी, ये पता नहीं कैसे लग गई। सबकी नजरें खुद पर महसूस करते हाथ गाल पर रखे वो बोला। मुझको यकदम कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ था। एक तरफ से नजर आते हमदान के गाल को देखा जहां वाजा सुर्ख निशान जगमगा रहा था। वापस मुड़ते वो छोटे छोटे कदम उठाती कमरे की तरफ चल दी। पहले तो मुझे ये ग्रैनी ना बोला कर, बीजा ने कहा। कहकर ना, जैसे सब कहते हैं। बीजान कहा करना जैसे सब कहते हैं। दूसरा इस पर कुछ लगा ले, ज्यादा ना हो जाए। बीजान की दोनों नसीहतों पर सह लाता वो अपने कमरे की जानिब हो लिया, लेकिन 10 बजे चाँद नजर आने वाली बात अभी भी समझ में नहीं आई थी। बेड पर चित लेटी वो सोने की कोशिश में थी। गहरी नींद का अब कहीं शुबा भी नहीं था। हाथों पर वजन डाले वो उठकर बैठ गई। खुले बालों को आधे कैचर में मुकीद करके नीचे खुले छोड़कर वो उठी। ड्रेसिंग के दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। क्रीम निकाल कर दिखती वो दरवाजे की जाने बढ़ी। एक कमरा छोड़कर अगले कमरे के बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर इसने गहरा सांस भरा। नरम दिल भी नहीं होना चाहिए, कहाँ कहाँ ले आता है। सोचा गया था। दस्तक पर चंद लम्हे बाद दरवाजा खुला। मुझको दरवाजे पर खड़ा देखकर हमदान की आंखों में हैरत उभरी थी। ये करीम है, बीजा ने भेजी है। ट्यूब इसके सामने करती वो बोली। किस लिए? ट्यूब को हाथ लगाए बगैर वो बोला। मुश्क ने गाल पर निशान देखा। इसके लिए। इशारा गाल की जानिब था। हाथ बढ़ाए हमदान ने ट्यूब मुश्क के हाथ से पकड़ी।
वो दुपट्टा भी तुमने जानबूझकर मारा था और ये क्रीम भी तुम अपने कमरे से लाई हो, इसलिए शुक्रिया नहीं बोलूँगा। बहुत आराम से वो मुझको गैर आराम कर चुका था, गलती से लगा था। जानबूझकर की गई गलती से तो सी की गई थी। वो कुछ बोलने को थी जब हमदान दरवाज़ा बंद कर गया था। मुंह पर दरवाज़ा बंद होता देखकर मुझका पूरा मुंह खुला था। इतनी बेइज्जती। 5 उंगलियां इसके दरवाजे को दिखाती हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। दरवाजे के इस पार खड़ा हमदान हाथ में पकड़ी ट्यूब को देखता मुस्कुराया था। वेल, इतनी भी बुरी नहीं है। सहरी से फारिग होकर वो सब बैठे अब अजान के इंतजार में थे। मुझको सबसे अलग सोफे सिंगल सोफे पर पाँव पसार कर बैठी, सर मोबाइल में दिए हुई थी। हमदान इस हवेली में आए आज पहली मर्तबा दुपट्टा इसके सर पर टका हुआ देखा था। फिर कहते हैं मैं शिकवा करती हूँ, जब पता ही चल गया था कि आज रोज़ा है तो यहाँ दरवाजे से आवाज़ देने में क्या गुम हो जाना था। जीनत पप्पो की आवाज़ पर सब इनकी जाने मुड़े भी जाने देखते ही आंखें घुमाई थी। ऐसी अफा दफड़ी पड़ी कि जेन से ही निकल गया। नगीना नगीना बोली थी, हर मौके पर मुझे ज़हन दिल घर सब से निकाल कर फेंक दिया करे। शिकवे शिकायतों के साथ ही हमदान के साथ वाली कुर्सी संभाली थी। मेरी बात सुन, तूने सहरी की या नहीं? बीजा ने जरा आगे को झुकते पूछा। कर ही ली है, वो भी अदन की आंख खुल आंख मौलवी का ऐलान सुनकर खुली तो मुझे बताया। हाँ, तो जो खाया है इसे क्यों जला रही है? चल गया ना पता अब। ज़ैनब पप्पो को फुल स्टॉप देना सिर्फ बीजा नहीं जानती थी। अदन हाल में आती मुझको ली हवेली के सेन में खाना हजम करने की घर से चक्कर लगाने लगी। एक नज़र सर पर चका दुपट्टे को ठीक करती मुझ पर डालकर हमदान हसान के साथ मस्जिद की जानिब निकल गया। फजर के बाद से वो अपने कमरे में थी और अब जोहर की अजान भी हो चुकी थी, मगर मुझका कहीं नामो निशान नहीं था। दरवाजे का हैंडल घुमा कर नगीना इसके कमरे में दाखिल हुई। नीम अंधेरे में डूबा कमरा किसी को भी सुला देता, यहाँ तो फिर नींद की शुदाई थी। उठ जाओ मुश्क, कम से कम रमज़ान में तो सोना कम कर दो, इबादत का महीना है। लेकिन नहीं, मेरी अनोखी औलाद को नींद पूरी करनी होती है। खिड़की के पर्दे पीछे करती वो साथ साथ बोल रही थी। खिड़की से आती रोशनी पर आंखें चंदियाई थी। दुपट्टा पकड़कर आंखों पर रखती वो करवट बदल गई। मुश्क में क्या कह रही हूँ, उठ जाओ, ज़ोहर हो चुकी है। सिर्फ फाका नहीं काटना, अल्लाह का नाम भी लेना है। रोज़े में सोना भी इबादत है अम्मी। नींद में डूबी आवाज़ उभरी थी। तो फिर मेरी औलाद सबसे ज़्यादा इबादत गुजार है। इसके सर पर खड़े होकर बोलते नगीना ने दुपट्टा इसकी आंखों से हटाया था। तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र लगी रहती है। तुम्हारी उम्र की लड़कियों ने पूरे पूरे घर संभाले हैं और एक तुम हो मुश्क जो अपना आप बड़ी मुश्किल से संभाल रही हो। बेड के किनारे पर बैठकर वो मुश्क के कंधे पर हाथ रखे बोली। इनके मध्यम लहजे पर मुश्क फौरन करवट बदले उठकर बैठी। वक़्त आने पर सब हो जाता है अम्मी। सब बातें एक तरफ, लेकिन वो अपनी अम्मी को ऐसे नहीं देख सकती थी। एकदम कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ जाए तो बहुत मुश्किल होता है। मुश्क ने इनका हाथ अपने हाथों में लिए चूमा। आप दुआ करें ना कि मुझे बहुत अच्छा मुस्तकबिल मिले, ख़ास तौर पर कोई मुझे नींद से ना जगाए। या खुदाया, फिर नींद? नगीना ने नफ़ी में सर हिलाया था। उठ जाओ अब, और किचन में मेरी मदद करवानी है। आज से तुमने इफ्तारी भी साथ में बनवानी है। संजीदा अंदाज पर मुश्क ने हाँ में सर हिलाया। हामी भरी थी। नगीना के जाने के बाद टाइम देखती वो फ्रेश होने वॉशरूम में बंद हो गई। मुश्क बीबी जामे शीरी में चीनी को मिला मुश्क बीबी जामे शीरी में चीनी कौन मिलाता है? वो खुद इतना मीठा होता है। जग में चीनी उंडेलने से पहले ही शिम्मी की आवाज़ पर वो रुकी। ज़्यादा मीठा पीना चाहिए, अखलाक भी इतने ही मीठे होंगे। चीनी का डब्बा बंद करके साइड पर रखती वो बोली, अखलाक का पता नहीं, खून मीठा होकर शुगर ज़रूर हो जाएगी। पकोड़े तलती शिम्मी ने इसके कड़े तेवरों से देखा था। मेरे अखलाक का सबसे बड़ा इम्तिहान तो तुम हो। हंसी दबाई शिम्मी अब की बार चुप रही थी। अफ्तारी में कुछ ही वक्त रह गया था। सब चीज़ें एक मरतबा चेक करती वो किचन से निकलकर बीजा के कमरे की जाने बढ़ी। बीजा के पास पहले से ही बैठे हमदान को देखकर इसने गहरा सांस भरा था। टेबल पर आ जाएं सब, आवाज़ पर हमदान ने सर उठाए दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ मुश्का निशान भी नहीं था। आवाज़ लगाते ही वो दरवाजे से ही गायब हो गई। चले बीजान। बीजान का हाथ थामे वो इन्हें अपने साथ लिए बाहर की जानिब चल दिया। आज की इफ्तारी हमदान की जीनत पप्पो के हाथ ही अपना साथ देने, और वो हसान को भी घसीट ले गया। अब वो ज़ीनत पप्पो के पास बैठा इनके और आरिफ के बचपन के किस्से सुन रहा था। यहाँ शायद बर्दाश्त कर रहा था। हुरम इन दोनों के पास बैठी अपनी माँ को मुसलसल बोलते देखे और दिल ही दिल में इनके चुप होने की दुआ मांग रही थी। हसान इन सब को मसरूफ देखता खामोशी से किचन की जानी बढ़ा। जहाँ रुख मोड़े अदन फ्राई पैन से पकौड़े निकाल रही थी। पकौड़ों के साथ थोड़ा अपना गुस्सा भी फ्राई कर ले।
जो हर वक्त मुझ पर आया रहता है। हसन की आवाज़ पर वो फौरन मुड़ी। दीवार के साथ टेक लगाए वो मज़े से खड़ा ऐसे देख रहा था। मुझे भला तुम पर गुस्सा क्यों आएगा? वापस रुख मोड़कर वो बोली, बिल्कुल, तभी तो हर दफ़ा सामने आने पर बरसती रहती हैं। तुम्हारी बातें ही ऐसी होती हैं। रुख अभी सामने ही था। हसन ने चंद कदम इसकी जानिब बढ़ाए। देखें, रमज़ान है, खुद ही मान जाए। अल्लाह जी से मांग लिया तो हर जिद गुस्सा यहीं गरम तेल में फ्राई हो जाएगा। इसकी बात पर गहरा सांस भरे रुख मोड़कर वो बिल्कुल इसके सामने आई। जिद तुम कर रहे हो हसन, मैं तुमसे बड़ी हूँ, बल्कि तुम्हारी मुश्कबाजी से भी 1 साल बड़ी हूँ। आवाज़ और लहजे को हद दर्जा नरम रखे वो बोली थी, आपके बार बार बताने से ना ही मैं बड़ा हो जाऊंगा और ना ही आप मुझसे छोटी। और वैसे भी जब मुझे कोई मसला नहीं है, फिर आप क्यों इतने अरसे से जिद लगाकर बैठी हैं? इतनी मासूमियत थी इसके चेहरे पर। अदर ने फौरन नज़रें घुमाई थीं। मुझे मसला है हसन, मेरी इज्जत करते हो तो मेरे फैसले का एहतराम भी करो। आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आपका फैसला नहीं मान सकता। मान लिया तो टूट जाऊंगा। इसकी बातों से सच्चाई झलकती थी, मगर वो किसी सच्चाई की जद में नहीं आना चाहती थी। बगैर कोई जवाब दिए रुख मोड़े वो अपने काम में लग गई। बाहर जाओ हसन। हसन की अभी तक मौजूदगी को महसूस करती वो बोली। कुछ भी बोले, वो रुख मोड़कर खड़ी अदन को एक नज़र देखता किचन से बाहर निकल गया। इसके जाते ही अदन ने गहरा सांस भरकर जैसे अपना सांस बहाल किया था। हसन मुश्किल हालात पैदा करता जा रहा था। मेरी अदन पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी है और अब सारा घर संभाले हुए है। बहुत अच्छी और सुगड़ बच्ची है। मेरी इफ्तारी के बाद चाय के लिए भी हमदान को फूफो ने रोक लिया था। अलबत्ता हसन यूनिवर्सिटी के काम के लिए घर जा चुका था। अच्छी बात है फूफो। अदन की तारीफों पर वो इतना ही कह सका था। अपना अपना चाय का कप थामे अदन और हुरम ने आंखें खोले एक दूसरे की जानिब देखा। अम्मी जो करने की कोशिश कर रही थी वो तो कोई बच्चा भी समझ आता। यहाँ तो फिर सामने हमदान बैठा था। हाँ तो तुम बताओ, कोई शादी वादी के इरादे नहीं है? चाय का घूंट भरते हमदान ने बामुश्किल घूंट गले में उतारा। कप टेबल पर रखता वो सीधा हुआ। नहीं, फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। अपनी बात करता वो खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ, दादा जान से कुछ काम है। मुस्कुराकर बहाना तराशता वो अदन और हरम की जाने मुस्कुराहट उछाले हवेली के दरवाजे की जाने बढ़ गया। हमदान के जाते ही अदन कप टेबल पर जोर से रखते उठी थी। अम्मी, बंदा इतना भी डाउन ना हो के जमीन के अंदर ही घुस जाए, इतनी शर्मिंदगी हो रही थी मुझे हमदान भाई के सामने। सख्ती से बोलने पर ज़ीनत पप्पो ने बस आंखें घुमाई थी। मैंने क्या कर दिया भी? बस वैसे ही एक बात कर रही थी। क्या मालूम इसका जहन बन जाए। लापरवाही ही तो अरूज पर थी। हुरम ने महज अपनी माँ के लॉजिक पर सर थामा था। या अल्लाह अम्मी, इसका ऐसा कोई जहन नहीं बनेगा, और अगर आइंदा ऐसी कोई बात आपने की तो कसम से अब्बू को बता दूंगी मैं। चाय के कप थामती वो पैर पड़ा थी किचन की तरफ बढ़ गई थी। जीनत ने हुरम को देखकर कंधे चाहे थे, जैसे मैंने क्या किया है? अम्मी, आप भी जदीद ज़माने में रहते हुए कदीम होने का सबूत ज़रूर देती हैं। वो भी जीनत की ही बेटी थी, पीछे क्यों रहती? चंद घंटे जीनत पप्पो के यहाँ गुजारने के बाद वो हवेली में आकर जैसे सुकून महसूस कर रहा था। एक तो जीनत पप्पो के नॉन स्टॉप किस्से और दूसरा अदन के हवाले से वो जो घुमा फिरा कर कहना चाह रही थी। सबसे मुश्किल काम इसे हजम करना था। वो अपने कमरे की जानिब चलता वहाँ वो अपने कमरे की जानिब चलता वो आहिस्ता पड़ा था। हसन के कमरे के साथ का दरवाज़ा देखकर वो रुका। दिल में जो ख्याल आ रहा था इस पर नफ़ी में सर हिलाए वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते खोलते फिर से रुक गया। कदम आगे की जानिब उठे थे और बंद दरवाजे के आगे रुके। सांस भर खानदान ने दस्तक दी। दूसरी दस्तक पर भी जवाब ना पाकर वो वापस जाने को था जब मुश्किल दरवाज़ा खोला था। मुश्क बीबी का कमरा था। इतनी जल्दी दरवाज़ा कैसे खुलता? दरवाजे पर खड़े हमदान को देखती वो बिजली की सी रफ्तार से मुड़ी। बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर कंधों पर डालकर वापस दरवाजे पर आई। वो नजरें नीचे की वहीं खड़ा था। मुझको एक लम्हे के लिए शर्मिंदगी ने आन घेरा। कोई काम था? इसे चुप देखते वो बोली, नहीं, एक्चुअली हाँ, सर ने बताया था तुम किताबें पढ़ती हो। क्या तुम मुझे कोई किताब दे सकती हो पढ़ने के लिए? कुछ ना बोलने से कुछ बोलना ही बेहतर था। भला किताब का हमदान ने क्या करना था? किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं आप? इसके सवाल पर हमदान ने अब की बार इसके चेहरे की जानिब देखा। नजरें खुद ब खुद नाक की छोटी सी लौंग पर गई थी। गहरा सांस भरता हुआ एक कदम पीछे हटा। हिस्ट्री टाइप? मेरे पास ऐसी कोई किताब नहीं है। मेरा और आपका टेस्ट मुख्तलिफ है। वो इससे पूछना चाहता था कि वो कैसी किताबें पढ़ती है, मगर फिर इरादा तय करता सर हिलाए वो वहीं से वापस मुड़ गया। मुश्क ने ज़रा सा सर निकाल कर इसे देखा। वो किताबों के लिए नहीं आए थे, इतना तो मुश्क को अंदाज़ा हो चुका था। अपने कमरे में दाखिल होते हमदान ने गहरा सांस भरा था। पता नहीं क्यों वो इसके दरवाजे के सामने खड़ा हो गया, और फिर इसकी नाक का लौंग क्यों इसे अट्रैक्ट करता था। दिल में आए हर ख्याल की नफ़ी करता हुआ अलमारी से ट्रैक सूट थामे वॉशरूम में बंद हो गया।
मेरे हमदान को पकोड़े पसंद आए हैं, शायद बड़े शौक से खा रहा होता है। अफ्तारी के वक्त बीजान मुस्कुराकर नगीना को बता रही थी। जवाबन वो मुस्कुराई थी। मैं रोज़ ही बनवा देती हूँ। बीजान पास बैठी मुश्क वज़ार अपने मोबाइल के साथ लगी इनकी बातें सुन रही थी। मोबाइल पर चलते हाथ रुके थे और दिमाग चला था। एक ही जस्त में उठती वो तेजी से किचन की जानिब चल दी। किचन में शिमी इफ्तार की तैयारी में मसरूफ थी। एक तरफ पकौड़ों का मसाला पड़ा देखती वो मुस्कुरा दी। गला खंगाल कर वो आगे बढ़ी। क्या कर रही हो शिमी बेगम? आवाज पर शिमी ने मुश्क को देखा। मीखे नवा रही हूँ। देख भी रही हैं बीबी, इफ्तारी की तैयारी में लगी हूँ। मुझे नवा रही हूँ। हाय हाय, यहाँ तो कोई इज्जत ही नहीं। अच्छा, तुम्हें वो बीजान बुला रही हैं? काम वही छोड़कर हाथ साफ करती शिमी किचन से बाहर निकलेगी। शिमी के जाती मुश्क ने एक अलहदा प्लेट में पकौड़ों का मसाला निकाल कर चम्मच भर भर के इसमें नमक और मिर्च के मिला दी। पहले से रखे फ्राई पैन में प्लेट का सारा मसाला उडेल कर दरमियाने साइज के पकौड़े निकालने लगी। किचन में दाखिल होती शिमी ने हैरानगी से देखा। बीजान तो कह रही हैं उन्होंने नहीं बुलाया। ओह, शायद मुझे सुनने में गलती हो गई हो। पकौड़े फ्राई करती वो मुस्कुराई थी। आप रहने दें, ये मैं कर लूँगी। टिश्यू पेपर प्लेट में रखकर सारे पकौड़े इसमें निकाले। वो शिमी की जानिब मुड़ी। गौर से देख लो, ये सफ़ेद वाले पकौड़े हमदान साहब के सामने रखने हैं। आई समझ शिमी बेगम। प्लेट हाथों में थामे शिमी के सामने की। हाँ जी आ गई है। ये देख लो इस प्लेट को, और खबरदार मेरा नाम लिया बस प्लेट इसके सामने रख देना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। ऐसी भी क्या बात हो गई? प्लेट शेल्फ पर रखकर वो किचन के दरवाजे की जानिब आई। कुछ भी नहीं, मैं चीज़ें टेबल पर लगाती हूँ, तुम बाकी पकौड़े फ्राई करो। कंधे कुचाती शिमी वापस अपने काम पर लग गई। जिस वक्त वो इफ्तारी के बाद अदन के घर देकर जिस वक्त वो इफ्तारी की प्लेट अदन के घर देकर आई, सब टेबल पर बैठ चुके थे। नजरें हमदान के सामने रखी चीज़ों पर डाले। वो भी अपनी कुर्सी संभाल गई। पकौड़ों की प्लेट को देखती वो दिल में मुस्कुराई थी। इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, बस इसे तंग करने में मज़ा आता था। कभी तो वो तंग आकर इसे बोलेगा या डांटेगा। मौलवी की आवाज़ पर दुआ मांग कर रोज़ा इफ्तार करते भी इसकी नज़रें मुसलसल हमदान की जानिब थी। बिला आखिर इसने हाथ प्लेट की जानिब बढ़ाया। मुश्किल सांस से एक लम्हे को रुकी थी। पकौड़ा उठाकर मुंह में रखती हमदान का दादा जान की बात पर मुस्कुराता चेहरा संजीदा हुआ था। हौले हौले से चबा के इसने मिर्च मसाले की ज्यादती को महसूस करते ही टिश्यू हाथ पर रखकर पकौड़ा मुंह से निकाल दिया। टेबल पर मौजूद तमाम नफूस ने इसकी हरकत को हैरत से देखा। पानी फूली हुई सांस के साथ पानी मांगने पर सा ने हाथ में पकड़ा गिलास फौरन से थमाया था। चेहरे का रंग लाल हो चुका था, जबकि आंखों में पानी की हल्की सी तय भी वाज़ह थी। एक लम्हे को मुश्क का दिल धड़का था, कहीं से मिर्च मसालों से एलर्जी तो नहीं। दिल ही दिल में सोचती वो अब इसे देख रही थी, जो पानी का पूरा गिलास एक ही घूंट में ख़त्म कर चुका था। हमदान, क्या हो गया पुत्र? बीजान की परेशान कुन आवाज़ आई थी। सबकी नज़रें इसी पर लगी थी। बहुत मिर्ची थी। इशारा पकौड़ों की जानिब था। ये तो बिल्कुल ठीक है। हसन अपनी प्लेट से पकौड़ा पकड़कर बोला। नगीना ने ट्रे से एक पकौड़ा उठाकर चखा। ये भी मुनासिब मिर्च के साथ थे, जिससे जैसे रोज़ होता है। हमदान का लाल मिर्च जैसा सुर्ख चेहरा देखकर अब मुश्क का दिल चाहा था कि वो किसी तरह यहाँ से गायब हो सके। शिमी, ये तूने बनाए हैं? दादा जान की करख्त आवाज़ पर आखिरी कुर्सी पर बैठी शिमी उछली थी। बनाए तो जी मैंने ही थे, मगर मैंने मिर्च बिल्कुल मुनासिब रखी थी। तो इन पकौड़ों में मिर्च कहाँ उड़कर पड़ी है? अब की बी जान बोली थी। मुश्क सर झुकाया, अब कलमा शहादत की तैयारी में थी। ये पकौड़े मुश्क बीबी ने फ्राई किए थे और कहा था कि हमदान साहब के सामने रखने हैं। शिमी, तुम्हारा कुछ ना रहे। मुश्क ने आंखें जोर से मीचकर खोलकर हमदान को देखा, जो पहले से ही नासमझी से देख रहा था। मुश्क, ये क्या बदतमीजी है? नगीना की आवाज़ पर वन की जाने मुड़ी, जो संजीदा तासुरात लिए इसे ही देख रही थी। मुश्क कुछ ना बोलते देखकर दादा जान की पहले से भी सख्त आवाज़ पर वो ज़रा सा उछली थी। नो नो दादा जान, मैंने बोला था मुश्क से कि मेरे पकौड़ों में मिर्च ज़्यादा रखे, लेकिन मैं खुद ही नहीं खा सका। माजरत, डिस्टर्बेंस फैलाने के लिए। दादा जान का गुस्सा देखते हुए फौरन से बोला था। मुश्क ने हैरानगी से देखा था। आंखों में हलकोरे लेते आंसू देखकर हमदान का दिल एक लम्हे के लिए मुट्ठी में आया था। नमाज का वक़्त हो गया है, चले मस्जिद चलते हैं। दादा जान की तवज्जो नमाज की जानिब करवाता हुआ खड़ा हुआ। इसके साथ ही हसन भी खड़ा हुआ था। राहील अब ज़्यादातर वक़्त डेरे पर ही गुजारते थे। वो रात के सहरी से पहले आते और दिन में ज़ोहर के वक़्त वापस चले जाते थे। मर्दों के जाते ही नगीना के ने साथ बैठी मुश्क का बाजू मर्दों के जाते ही नगीन ने साथ बैठी मुश्क का बाजू जोर से थामकर झटका दिया था। क्या बेहूदगी थी ये मुश्क? जरा सी इज्जत की जो परवाह हो तुम्हें?
माँ का इतना सख्त रूप देखकर वो पहले से भी ज्यादा रोने वाली हो गई थी। बस नगीना, वो बता चुका है कि उसने खुद बोला था, अब कोई इस बात का जिक्र ना करे। जाओ मुश्किल नमाज पढ़ लो। बीजान के कहते ही वो कुर्सी छोड़ती तेजी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। मुझे पूछ तो लेने देती, बीजान को देखकर नगीना बोली थी। बस अब कोई इससे कुछ नहीं पूछेगा, नमाज का वक्त जा रहा है। अपनी बात कहती वो कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। तुमने वाकई ऐसा किया था मुश्क? अदन के हैरत में डूबे सवाल पर इसने सरस बात में हिला दिया। वो तरावी के बाद छत पर ठंडी हवा लेने आई थी जब मुश्क ने अदन को अवतार के वक्त हुआ किस्सा सुनाया। पर क्यों? मैं सिर्फ मजाक कर रही थी यार, मुझे नहीं पता था मामला इतना गर्म हो जाएगा। हवा से लहराते बाल कान के पीछे घुसाते वो बोली, किसी ने कुछ कहा तुम्हें? नाना जान या बी जान या नगीना मामी? कहने ही वाले थे कि हमदान ने कह दिया। वो पकोड़े इसके कहने पर मैंने बनाए थे। मुश्क के आराम से कहने पर चलते चलते अदन के कदम रुके थे। मुश्क ने गर्दन मोड़ कर उसे देखा। हमदान ने ऐसा कहा? हाँ। तुम्हें माजरत करनी चाहिए हमदान से। अदन की बात पर इसने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, मैं इसके सामने ही नहीं जाना चाहती। क्या था अगर वो डांट देता? इतना अफसोस तो ना होता ना मुझे। इस तरह करके तो मुझे हल्का हल्का शर्मिंदा ही कर दिया है। इसके हल्का हल्का शर्मिंदा होने पर अदन हंसी थी। तुम भी अजीब हो, इसने डांटा होता तो इस वक्त तुम आग बबूला हुए इसे मारने के दर पर होती। अदन ऐसे नहीं अदन इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। मुश्क कभी किसी बात की परवाह करने वाली नहीं थी। अदन ने बगौरे से देखा। तुम्हें डांट पड़ता नहीं देखना चाहता होगा। मुश्क के कदम आस्ता हुए थे। टेबल पर दादा जान की डांट शुरू होने से पहले हमदान का फिक्रमंद सा चेहरा इसकी आंखों के सामने घूमा। सर को नफी में झटकती वो अदन के हम कदम हुई। ऐसा कुछ नहीं, वो मेरी परवाह क्यों करने लगा? हम दोनों बहुत मुख्तलिफ है। अदन इसकी बात पर हंसी थी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, तुमने देखा नहीं वो तुम्हें कितनी संजीदगी से देखता है। मुझे और हरम को देखकर वो हमेशा बड़े भाइयों वाली सी अच्छी सी स्माइल देता है, लेकिन तुम्हें इसने कभी इस तरह नहीं देखा। तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। अदन इसकी उलझन पर बस हंस दी। सीढ़ियां उतरकर अदन अपने घर के दरवाजे की तरफ चल दी, जबकि वो राहदारी से गुजरती अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी। जब वस्त में किसी ने इसका बाजू पकड़कर खींचा था। अचानक हमले पर वो तो चीख भी नहीं सकी थी। सांस जहां पर था कुछ सेकंड के लिए वहीं पर थमसा गया था। जोर से मिची हुई आंखें खोलकर इसने सामने खड़े हमदान को देखा, जो इसके अपने कमरे के दरवाजे से अंदर खींच चुका था। दूसरी नजर इसके हाथ में जकड़े अपने बाजू को देखा। क्या बदतमीजी है ये? बाजू को झटका देती वो जरा नागवारी से बोली थी, मगर हमदान की पकड़ जूं की तू ही थी। पहले तुम बताओ, क्या बदतमीजी थी वो? लहजा बिल्कुल संजीदा लिए हुए था। क्या मतलब है? किस बारे में बात कर रहे हैं? और पहले मेरा बाजू छोड़े। इसकी बात पर हमदान की पकड़ मजीद सख्त हुई थी। मुश्क ने आंखें वाह किए से देखा। कम स्ट्रेट टू मी, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट मुश्क। वो मिर्ची वाले पकोड़े बनाने की वजह बताओ। इसके सीरियस अंदाज पर मुश्क ने थूक निकला था। वो गलती से आपकी तरफ चले गए थे, इसके अलावा कोई वजाहत नहीं दूंगी। मेरा बाजू छोड़े, मुझे अपने कमरे में जाना है। मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। बेहतर यही है तुम मेरे मामला से दूर रहा करो। कुछ ना होते हुए भी मुझको इसके अल्फाज अच्छे नहीं लगे थे। दिल अजीब सा हुआ था। बाजू छोड़ें, सख्त संजीदगी से कहने पर हमदान इसका बाजू छोड़ता पीछे हट गया। कोई भी सख्त जुमला नहीं बोला गया था, फिर भी मुझको अपनी बेइज्जती सी महसूस हो रही थी। जिंदगी में वो कभी इतना बुरा महसूस ना कर रही होगी जितना इस वक्त हमदान ने इसे करवा रहा था। हमदान की उंगलियों के निशान पर हाथ रखे वो कुछ भी सख्त सुस्त बोलने से खुद को रोकती मुड़ी ही थी जब वो दोबारा इसकी आवाज़ पर रुकी। नॉर्मल लड़कियों की तरह एक्ट किया करो मुश्क, और इस दुपट्टे को एहसान की बजाय जिम्मेदारी से उड़ा करो। सब्र का पैमाना दरबेज होना क्या होता है? कोई मुश्क से पूछता। अगला सांस लेने से पहले वो मुड़कर हमदान तक पहुंची। इसकी शर्ट के कॉलर को दोनों हाथों में जकड़ चुकी थी। हमदान बेहद हैरानगी से इसकी हरकत को देखा। हमदान आरिफ, अपनी 24 साल जिंदगी में किसी ने मुझ पर हुक्म नहीं चलाया। मध्यम आवाज में जैसे वो गराई थी। हमदान ने इसकी सी आंखों में हल्की नमी के साथ बेशुमार गुस्सा देखा। नीम रोशन कमरे में इसकी लौंग की चमक से एक झलक से भी पहले इसने नजरें फेर ली थी। अपनी 28 साल जिंदगी में मैंने तुम जैसी बदतमीज लड़की नहीं देखी मुश्क। राहील, हमदान की बात पर कालर छोड़कर हाथ इसके सीने पर रखे अपनी तरफ से जोर से धिक्का दिया था, जिस पर हमदान हिल 1 इंच ही हिल सका था। एक भी लम्हा ज़ाय किए बगैर वो तेजी से इसके कमरे से निकल गई थी। पीछे खड़े हमदान ने खाली जगह को देखा जहां वो कुछ सेकंड पहले खड़ी थी। इसके एहसासात मुश्क के लिए बदल रहे थे और वो ये नहीं चाहता था। इसमें और मुश्क में बहुत फ़र्क था, और इन दोनों की दुनिया में भी बहुत फ़र्क था। मुश्क राहील, जिसे नींद से उठा दिया जाए तो वो सारा दिन
चाहे इस बात पर नाराज़ रहती थी हमदान आरिफ जिसके लिए ज़िंदगी में तरतीब सब कुछ थी, चाहे वो वक़्त हो या फिर कमरे में पड़ी इसकी चीज़ें। मुश्किल जो हम वक़्त कंधे पर रखे दुपट्टे से उलझती रहती थी, और हमदान आरिफ जिससे मुश्किल लापरवाही से उलझन होती थी, वो दोनों मुख्तलिफ थे हर लिहाज से, मगर इसकी नाक की लौंग लौंग का कहाँ कमाल था, वो तो मुश्किल चेहरे पर ही धाक बढ़ा रही थी। सर को झटककर इसने खुद को इन एहसास से आज़ाद करवाया था। सख्त अल्फाज बोलने का मकसद सिर्फ खुद को इससे दूर रखना था। वो जो महसूस कर रहा था इसकी जद में नहीं आना चाहता था। अपने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करती वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए बेड के किनारे पर बैठ गई। मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, ये अल्फाज इसे भूल नहीं रहे थे, लेकिन क्यों? वो तो हमदान पर एक एक के बाद दूसरी नज़र भी नहीं डालती थी। मेरे मामला से दूर हूँ अब तो मैं तुमसे भी इतना दूर रहूंगी कि खुद के होने पर शुबा हो जाएगा। उंगलियों से आंखों को मसलकर जलन को थोड़ा कम करने की कोशिश की थी। सर झटक कर उठती वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। मैसेज की बी पर फोन बेड पर साइड से उठाकर स्क्रीन पर नजर डाली। हसान का नाम देखते उसने मैसेज खोला था जो इसे हवेली में आने का कह रहा था। दिल में आया कि नजरअंदाज करते, फिर सोचा कि इनकार करते। बिला आखिर सुई हुई हुरम पर नजर डालती और दुपट्टा पकड़कर सर पर उड़ती हवेली की तरफ निकलने वाले दरवाजे की जानिब बढ़ गई। दरवाजे से निकलते साथ ही छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियां थी। अपने ध्यान में वो हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ जाने वाली थी जब हसान की आवाज पर मुड़ी। वो नीम अंधेरे में डूबी सीढ़ियों के वस्त पर बैठा था। कदम उठाते इसने पहली सीढ़ी पर खड़े होकर हाथ बांधे इसे देखा। अदन के इस अंदाज पर हमेशा की तरह धीरे से हंसा था। क्यों बुलाया? संजीदा सा सवाल था। मुझे यकीन था आप मैसेज की बजाय मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे पूछेंगी। मुकाबले का लहजा इतना पुरसकून था, मुझे लगा था हवेली में कोई काम होगा। हवेली का इतना अहम काम आपके सामने ही है। गहरा सांस भरते अदन ने खुद को जिच होने से बचाया। रोका, मैं वापस चली जाऊंगी एहसान, या तुम बताओगे किस वक्त क्यों बुलाया है? आप ऊपर जाएं, यहाँ बैठकर मेरी आप ऊपर जाएं, यहाँ बैठकर मेरी बात सुन लें। सीधे होते अदन के लिए जगह बनाई थी। चंद सेकंड इसको दिखती वो सीढ़ियाँ चढ़ती, एक सीढ़ी से इससे ऊपर बैठ गई। एहसान ने गर्दन मोड़कर इससे आईब्रो चाकर देखा। ऐसे मत देखो और जल्दी बोलो। रुख वापस मोड़ते इसने मुस्कुराहट दबाई। मैं अम्मी और बीजान से बात करने वाला हूँ। आराम से कही बात पर अदन ने इसके सर को घूर कर देखा। तुम्हारा दिमाग शायद काम करना छोड़ चुका है। अपनी भी बेइज्जती करवाओगे और साथ में मुझे भी बातें सुनवाओगे। सख्त लहजे में कही बात पर इसने मुड़कर अदन को देखा था। कोई बेइज्जती नहीं होगी और कोई आपको बात नहीं करेगा। ये मेरी पसंद है और मुझे हक है मैं अपनी पसंद के बारे में नहीं मैं इन्हें बताऊं। अदन ने इसकी जानिब देखा। तुम अभी जज्बाती हो रहे हो हमदान, तुम अभी जज्बाती हो रहे हो हसान। ये बात पसंद ना पसंद तुम्हें कुछ अरसा बाद समझ में आ जाएगी। 4 साल से अगर पसंद नहीं बदली तो मुझे खुद पर यकीन है आगे भी कभी नहीं बदलेगी। रुख मोड़कर नजरें अंधेरे में डूबे सहन पर रखें। अदन ने गहरा सांस भरा था। तुम बहुत अच्छे हो हसान, और तुम एक अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। मैं तुमसे बड़ी हूँ। यह माशरा इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। बातें बनाता है। मैं खुद पर या तुम पर कोई बात नहीं आने दे सकती। मदम आवाज में बोलती हुए चुप हुई थी। अदन, मैं आप पर कोई बात नहीं आने दूंगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, जब आपका दिल एक्सेप्ट कर लेगा तो कोई दूसरा तीसरा क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता। तुम जिद कर रहे हो हसान, आप जिद मान लेना। रुख मोड़े से देखा था। सिर्फ एक मर्तबा मुझ पर यकीन करके देख ले, मैं आप पर कोई बात नहीं आने दूंगा। मैं आपकी इज्जत करता हूँ अदन, और इज्जत करने वाले रुसवा नहीं किया करते, मान रखते हैं। इसके अल्फाज से सच्चाई महसूस हो रही थी। अदन ने इसकी आंखों में देखा। इसकी आंखें और इसके तासुरात बहुत मासूम थे। वो कैसे इन्हें उदास कर सकती थी? वो कैसे इसका मासूम सा दिल तोड़ सकती थी? वो इसके जज्बात की कदर करती थी मगर लोगों से भी डरती थी। अगर घर में किसी ने इतना सा भी एतराज़ किया तो तुम पीछे हट हट जाओगे, समझ रहे हो ना हसान? और अगर ज़ैनब अप्पा ने एतराज़ किया तो? हसान के सवाल पर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुई थी। मैं इन्हें संभाल लूंगी, इतनी सी बात थी। और हसान के दिल में लड्डू फूटने लगे थे। पूरा इसकी जानिब मुड़े वो खिलकर मुस्कुराया। बहुत शुक्रिया, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। इसके पुरजोश अंदाज पर अदर मुस्कुराई थी। हाथ उठाकर इसके बिखरे बाल मजीद बिखारे। हट जाओ, अब मुझे घर जाना है। सहरी में थोड़ा ही वक्त रह गया है। सहलाता वो खड़ा होता नीचे उतरा। अदन सीढ़ियाँ उतरते इसके सामने आई थी। वो उम्र में भले 2 साल छोटा था मगर जिसामत के लिहाज से कोई भी कह सकता था कि वो अदन से बड़ा है। इसके पास से गुजरने पर हसान ने हल्की से सर को जनिश दिए से अलविदा कहा था। दरवाज़ा खोलकर अदन के अंदर जाने तक वो खड़ा इसे दिखता रहा। इसके अंदर जाने के बाद लबों पर मुस्कुराहट लिए वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इस दिन के बाद से मुश्क ने हमदान के सामने आना ही कम कर दिया। सारा दिन अपने कमरे में रहने के बाद वो इफ्तारी से पहले तैयारी के लिए किचन में चली जाती थी। सहर और इफ्तार के टेबल पर मुंह
लग कर अपना खाना खाने के बाद वो सबसे पहले वहां से गायब होती थी। सब कुछ इसके कहे के मुताबिक था, फिर भी हमदान को अच्छा नहीं लग रहा था। वो सिर्फ इसकी जानिब उठी नजरें ही नहीं, इसकी बातों की कमी भी महसूस कर रहा था। वो अगर बोल भी रही होती तो इसके आने पर चुप हो जाया करती थी। वो जिद्दी थी, भला के जिद्दी, अपनी बात पर पक्की। खाने के टेबल पर बैठा वो गाय बगाए इसको देखता रहता था। किसी लम्हे वो नजरें ऊपर करके से देखेगी, मगर हर मर्तबा इसकी नजरों को मायूसी होती थी। वो आसपास रहती थी तो अपने एहसास से डर लगता था, वो दूर रहने लगी थी तो एहसासात पहले से भी ज्यादा दिल पर गालिब आ रहे थे। हेलो लेडीज, नगीना और बीजान को बैठे देखकर वो राग लापता इनके पास आया। सलाम लिया कर, झन्नों में ना भेज दिया कर। तस्बीह फेरती बीजान की बात पर वो हंस दिया। वो इस वक्त बीजान के कमरे में मौजूद थे। रोजा रखकर सब अपने कमरों में बंद थे, जबकि वो अभी यूनिवर्सिटी से आया सीधा इन्हीं के पास आ बैठा। मुझे आप दोनों से एक बात करनी है, जितनी संजीदगी से वो बोला था। आंखें छोटी की नगीना पूरी इसकी जानी मुड़ी। खबरदार, जो तूने ये कहा कि तुझे वहाँ यूनिवर्सिटी में कोई लड़की पसंद आ गई है। इसकी बात खत्म होते ही बीजान बोली थी, बिल्कुल, मैं भी इसी हक में हूँ। नगीना बेगम भी बोली थी, खामोश हो जाएं लेडीज, ये बात ये है कि लड़की तो पसंद आ गई है, मगर यूनिवर्सिटी की नहीं है। हसन की बात पर दोनों खवातीन का मुंह खुला था। खानदान से बाहर भी मत सोचना, मैं बाहर की कुड़ी अपनी हवेली में नहीं लाऊंगी। बीजान के तो नखरे ही नहीं मान। हसन ने गहरी सांस भरी थी। आप लोग शायद चाहते ही नहीं कि मेरी शादी हो। अभी किसने कहा? तुम बताओ, कौन लड़की है और कहाँ रहती है, क्या करती है? नगीना के सवाल पर वो चंद लम्हे खामोश हुआ। बिला के उसने मुंह खोला, अदन। यक लफ्ज़ी जवाब पर बीजा नगीना का पहले से ही खुला मुंह मजीद खुला था। अब हैरानगी थी या इनकारी, ये सांस समझ नहीं पाया था। अदन? अपनी अदन? जिनत की अदन? सवालात ही सवालात थे। और कौन सी अदन है हमारे खानदान में? वो हल्का सा जिच हुआ था। वो तुमसे बड़ी है हसान। नगीना की मदम सी आवाज़ पर कहने पर हसान ने हैरानगी से नहीं देखा था। नहीं अम्मी, आप ऐसी बातें करते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। पढ़ी लिखी बाशौर औरतें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देती। भी जान आए बग चाहे अपने पोते की समझदारी को देख रही थी। मेरा वो मतलब नहीं था। जीनत और अदन भी तो इतराज कर सकती है ना। आपका अपना दिल मानेगा तो कोई इतराज नहीं कर सकेगा। नगीना इसकी बात पर चुप हुई थी। मुझे तो कोई इतराज नहीं है, मेरी अदन तो वैसे ही मुझे बहुत प्यारी है, अपनी माँ से बिल्कुल अलग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बीजान की बात पर एहसान खिलकर मुस्कुराया था। करीब होते बीजान का माथा जोर से चूमा। मुझे पहले ही पता था। नगीना की जानिब देखा, जो संजीदगी से ने देखती। चंद लम्हे बाद हल्का सा मुस्कुरा दी। अदन बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर माँ होने के नाते मुझे थोड़ा बहुत एतराज़ होता तो मैं इसे इस बिना पर ख़त्म कर देती कि वो तुम्हारी पसंद है। नगीना की बात पर हसन ने मुस्कुराते अपने मजबूत बाजू में इन्हें लिया था। मुझे पता था आप दोनों कभी इनकार नहीं करेंगी, तभी तो मैं दादा जान से पहले ही आपके पास आया हूँ। तेरे दादा जान का तो बात चले, वो तुझे दूसरा सांस लेने से पहले दूल्हा बना दे। बीजा ने सर झटका था। नगीना और हसन हंस दिए। और सुना तो मुझसे पहले हमदान भाई का हक है, वो परदेश से आया है और अपने माँ बाप की मर्जी से कहीं करेगा, हमें कौन पूछता है। बीजान और इनकी इमोशनल टोन। नगीना को छोड़ता वो बीजान के पास बैठा था। चले, मैंने तो पूछ लिया ना, और लड़की भी ऐसी है कि कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। सो तो है। नगीना के कहने पर सांस समेत बीजान भी मुस्कुरा दी थी। दिन तो गया पर लगाकर उड़े दिन तो क्या पल गोया पल लगाकर उड़ रहे थे। पलक झपकते ही आखिरी अशा भी आन पहुंचा था। आज मौसम खुशगवार सा था। ठंडी हवाएं सुबह से रक्स कर रही थी। किसी भी वक्त बारिश आने का शुबा था। अच्छा मौसम देखती मुझ किताब के लिए अपने कमरे से निकली थी। छत पर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठी हुई मौसम से लुत्फानंदोज होने के साथ साथ किताब में भी मसरूफ थी। कुछ देर बाद हमदान की आवाज़ पर इसने पहलू बदला। वो शायद फ़ोन पर किसी से बात करते सिजानी बाहर आता सीन की तरफ जाते हुए वो चंद लम्हों के लिए रुका था। हवा की वजह से मुंह पर आने वाले बालों को कानों के पीछे अड़ेसते हुए वो पूरी तरह से गोद में खुली किताब की जानिब मुतवज्जो थी। स्क्रीन पर नजर आती फजर की आवाज़ पर वो मुश्किल ख्याल से बाहर आया। क्या आप कहीं बाहर घूमने के लिए गए हैं? फजर से पूछी थी। शहर में जाने के बजाय वो वहीं पर छोटे छोटे कदम उठाने लगा। एक दो मरतबा हसन के साथ गया था, फिर रमज़ान आ गया। गाय बगाए नजरें सामने बैठी लाताल्लुक से बनी लड़की पर भी डाल रहा था। अच्छा ये बताएं कि यहाँ सबसे ज़्यादा आपको क्या अच्छा लगा, मतलब कि चीज़ ने आपको अट्रैक्ट किया? फजर के सवाल पर जहाँ हमदान की नज़रें सामने उठी थी, वही मुश्क भी सर झुकाया गैर आदि तौर पर इसके जवाब की मुंतजर थी। एक स्टोन है, छोटा सा। नजरें सामने बैठे नपूस की नाक की लौंग पर थी। मुश्किल नासमझी से नाक चढ़ाए किताब को देखा। वो कहना क्या चाह रहा था? स्टोन? क्या मतलब? कौन सा स्टोन? कहाँ पर है? मुझे भी दिखाए। फजर के सवालात की लाइन पर इसने नजरें हटाकर स्क्रीन पर देखा। बाद में बताऊंगा, मुख्तसर सा जवाब देता वो राहदारी की जानी बढ़ गया। मुश्किल ने सर उठाई, इसकी पुश्त को देखा। अभी बता देता तो क्या चला जाना था? फजूल का तजस्सुस डाल दिया। अपनी बात कहे वो चंद सेकंड रुकी थी। एक मिनट में किसी खुशी में टेंशन ले रही हो?
हूँ करती हूँ दोबारा से किताब पर झुक चुकी थी। वो नगीना को बुलाने बीजा के कमरे की तरफ आई थी। जब अंदर से आती आवाज़ों पर रुकी, सबसे ज़्यादा तवज्जो इसकी हमदान के नाम ने खींची थी। ज़रा सा पीछे हटती वो दरवाजे के साथ खड़ी थी। तेरा ज़हनी तवाज़ुन शायद बिगड़ गया है। बीजा की ताहट बड़ी आवाज़ आई थी। लो जी, मैं इसमें ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने की क्या बात हुई भला? इसमें बुराई ही क्या है? ये ज़ीनत पुप्पो थी जो कोई बात मनवाने के चक्करों में लग रही थी। नगीना कमरे में नहीं थी, गालिबन वो इस वक्त किचन में थी, मगर मुश्क को कोई और ही मिशन खुला मिल गया था। वो परदेस से आया है, अपनी खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारता है, हम क्यों इस पर अपनी मर्जी मुसलत करें? बीजान एक मर्तबा बात करने से क्या जाता है, हमदान से नहीं तो आरब से कर लें। हो सकता है इसकी भी ख्वाहिश हो कि इसका बेटा ख़ानदान से जुड़ा रहे। ज़ीनब पुप्पो को कभी किसी काम के मामले में इतना एनर्जेटिक नहीं देखा था जितना वो इस वक्त लग रही थी। बीजा ने गहरा सांस भरा था। तूने अपनी बेटी से पूछा है कि इसकी मर्जी क्या है? मुँह उठाकर रिश्ते कराने चली आई है। बीजान की बात पर वो एक लम्हे के लिए सुन हुई थी। हमदान और अदन, वो सिर्फ सोच सकी थी ज़ीनब पुप्पो ने क्या जवाब दिया और फिर बीजान ने क्या बोला वो नहीं जानती थी। दिल एकदम हर चीज़ से उठ सा गया था। हमदान और अदन वहीं से मुड़ती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी। जब राहदारी में खड़े हमदान और अदन को किसी बात पर हंसता देखकर वो रुकी थी। वो दोनों हंस रहे थे एक साथ। तो क्या ज़ीनब पुप्पो की बात सच हो जाएगी? इन दोनों को देखती वो सोच रही थी। हंसते हुए हमदान का रुख राहदारी में मुश्क की जानिब घुमा था जो यकटा किन्हें देख रही थी। अदन की भी तवज्जो इस तरफ हुई। इससे पहले कि वो मुश्क को आवाज़ देती, मुश्क दरवाजे का हैंडल घुमाती अपने कमरे में बंद हो गई। अगर मुझे रिश्ता ही करवाना होता तो मेरे घर में लड़की मौजूद है, मगर मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकती। अपनी खुशी से जो काम किया जाए वही ठीक होता है। और रही अदन की बात, तो इसका मैं फैसला कर चुकी हूँ। बीजान की बात पर जहाँ ज़ीनब पुप्पो को कुछ पुरसुकून हुई थी, वहीं अदन की बात सुनते ही नासमझी से बीजान को देखा। क्या मतलब? कौन सा फैसला? सवाल पर बीजान चंद लम्हे खामोश हुई थी। हसान की पढ़ाई मुकम्मल होने में कुछ ही वक्त रह गया है, फिर आएंगे तुम्हारी तरफ। ज़ीनब पुप्पो मुँह हल्का सा वाह हुआ था। आपका मतलब हसान के लिए अदन का हाथ मांगेगी? हाँ। हल हल्का खुला मुंह जरा और वाह हुआ था। बीजान, रोजे रखकर आपके दिमाग में शायद तो खुश्की हो गई है। अदन हसान से बड़ी है। बीजा ने हाथ जलाया था। कौन सी किताब में लिखा है कि लड़की बड़ी हो तो शादी नहीं हो सकती? बीजान के जवाब पर वो खामोश हुई थी। लोग बातें बनाते हैं बीजान, मदम सी आवाज़ थी। बीजा ने सर नफ़ी में हिलाया। तो बातें ना बनाएं तो लोगों की इतनी जुर्रत नहीं कि हमारे बच्चों के बारे में कोई बात कर सके? नहीं बीजान, हम जिस रिश्ते में हैं वही अच्छा है। इसमें मैं इस हक में नहीं हूँ। ज़ीनब पुप्पो के साफ इनकार पर बीजा ने ज़रा हैरानगी से देखा। ठीक है, तेरी मर्जी, मैं अब अजीज से ही बात करूंगी। अब हैरान होने की बारी ज़ीनत पुप्पो की थी। बीजान, माँ मैं हूँ और मैंने अपना फैसला सुना दिया है। बाप का फैसला ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ीनत ने पैर पटके थे। जानती थी अजीज़ बीजान को किसी सूरत इनकार नहीं करेंगे। चल हमें मज़ीद। बीजान के साथ बहस के बाद आखिर में वो रोने वाली हुई और अपने घर को चल दी। 1000 करवटें लेने के बाद जब नींद कोसों दूर लगी तो वह तंग आकर बैठ गई। अजीब हालात थे। पहले नींद जाती नहीं थी और अब आती ही नहीं। कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाने पर इसे एकदम घुटन का एहसास हुआ था। साइड टेबल पर दुपट्टा ओढ़ती वो कमरे से बाहर निकली। राहदारी मुकम्मल खामोशी में डूबी थी। घर का हर जीरो अपने कमरे में बंद था। चंद लम्हे दरवाजे के पास खड़े होने के बाद छोटे छोटे कदम उठाती वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। खामोश रात की हल्की और ठंडी हवा ने इसके साबों को यकलख्त ही सुकून दिया था। छत पर पहुंचकर एक साइड पर पड़ी चारपाई पर चित लेट कर इसने आंखें इसे नजरें तारों से भरे तारीख और वसी आसमां पर टका दी। बजाय सब ठीक था, मगर दिल ठीक क्यों नहीं था? अजीब सी उदासी थी। ऐसा पहले कभी क्यों महसूस नहीं हुआ? मैं वही मुश्क हूँ जो सारे दिन में सिर्फ और सिर्फ नींद में चुप सिर्फ और सिर्फ जो सारे दिन मैं सिर्फ नींद में चुप करती थी। अब किसी से बात करने को दिल क्यों नहीं करता था? अपने कमरे से बाहर भी जाने का दिल नहीं करता था। ये रमज़ान मेरे लिए इतना उदास क्यों है? लोग तो इस मुबारक महीने में पुरसकून हो जाते हैं, फिर मुझे बेसुकूनी क्यों है? नजर आसमान पर रखती गोया वो दिल ही दिल में आसमान वाले से हम कलाम थे। फिर भराई आंखों से आंसू निकलते इसकी कनपट्टियों में गुम हो गए। पलक झपक कर मुश्क ने अपनी आंखों और कनपट्टी को छुआ। नमी पर वो शदीद हैरान हुई थी। वो रो रही थी। हाँ, वो रो रही थी, लेकिन क्यों? किस लिए? किसके लिए? आंखें जोर से रगड़ कर वो चारपाई पर उठकर बैठी। तुम एक जिद्दी लड़की हो जिसे किसी चीज़ की परवाह नहीं, ना किसी के आने की और ना ही किसी के जाने की। तुम मुश्क जो इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखती। खुद को समझाती हुई एकदम रुकी थी। एक मिनट, किन चीज़ों पर? मैं किन चीज़ों की बात कर रही हूँ? थूक निकल कर इसने हाथ चेहरे पर फेरा। जो ख्याल इसके दिल में आ रहा था वो जुबान पर नहीं लाना चाहती थी। प्यार, मोहब्बत। बिला आखिर एक गहरी सांस खारिज हुई थी। नहीं मुश्क, तुम और वो दो अलग दुनिया हो। तुम मशरिक हो तो वो मगरिब है। तुम सूरज हो
मिजाज की गर्म और वो चांद है नरम और ठंडा, तुम इसकी ज़िंदगी में कहीं पर फिट नहीं हो सकती, वो कभी तुम्हारी ख्वाहिश नहीं करेगा। हाँ, अदन इसके लिए बेहतरीन है, क्योंकि वो अदन जैसी लड़की की ख्वाहिश ही कर सकता है, अच्छी और सुलझी हुई, नरम और ठंडे मिजाज वाली, बिल्कुल इस जैसी। गाल पर बहने वाले आंसू को साफ करते इसने दोनों हाथ चेहरे पर फेरे थे। जिंदगी में पहली मर्तबा को इस कदर बुरा लगा था, और जिंदगी में पहली मर्तबा वही इंसान दिल की हालत गैर कर रहा था। हमदान आरिफ, तुम्हें अल्लाह पूछेगा, कनाडा से तुम मेरा दिल ही जलाने आए थे। सर झटकर वो चप्पल पैरों में रेसती सीढ़ियों की जाने बढ़ गई। सीढ़ियां उतरकर वो राहदारी में चलते अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी, जब सामने से आते हमदान पर नजर पड़ी। हाथ में पकड़ी पानी की बोतल से अंदाजा हो रहा था कि वो किचन से आ रहा था। मुशक का हाथ गया इरादतन ही कंधे पर बड़ा दुपट्टा ठीक करने के लिए बढ़ा। हमदान ने राहदारी की रोशनी में से देखा, नाक पर चमकती हुई लौंग सिर्फ इतनी सी नजर में मुश्क के लिए इसके जज्बात में इजाफा हो जाता था। दोनों खामोशी से एक दूसरे के पास से गुजरे थे। मुश्क सब उसे मुश्क ही कहकर बुलाते थे, मगर हमदान के मुंह से अपना नाम इसे हमेशा अलग सा महसूस होता था, अलग सा, खूबसूरत सा। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखती वो नाम की पुकार पर मुड़ी। हमदान वहीं खड़ा था जहां वो इसके पास से गुजरी थी। तुम ठीक हो? मुश्क के देखने पर इसने पूछा। हाँ, क्यों? पता नहीं, तुम काफ़ी मुख्तलिफ लग रही हो, एक घर में रहते हुए भी नज़र नहीं आती। नज़रें मुश्क की आंखों और चमकती हुई लौंग पर थी। मुश्क ने हैरानगी से इसे देखा। आपका और मेरा कोई वास्ता नहीं है, तो फिर आपको मेरे नज़र आने या ना आने से क्या फ़र्क पड़ता है? अपने अल्फाज खुद पर उल्टते देखकर इसने गहरी सांस भरी थी। 2 कदम इसकी जानी बढ़ाए थे। मुझे तुमसे एक्सक्यूज़ करना चाहिए, मैं इस दिन काफ़ी रूड हो गया था। मुझे किसी एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे थे वैसे ही ठीक हैं। वापस मुड़ते हैंडल घुमाया। मुश्क नाम की पुकार पर इसने आंखें बंद किए, गहरा सांस भरा। आई एम सॉरी इफ माई वर्ड्स एवर हर्ट यू, मदम से लहजे में कहने पर मुश्क ने से देखा। हमदान इसी को देख रहा था। नॉट ओनली वर्ड्स। इसके कमरे में बंद होने के बाद भी वो वहीं खड़ा इसकी बात पर गौर करता रहा। क्या इसने वाकई से हट कर दिया था? अजीज या बीजान ने तुझसे तेरी मर्जी पूछी, तू मुकर जाना? जीनत के राजदाना अंदाज पर अदन ने हैरानगी से इन्हें देखा था। किताब में सर दिए हुरम ने माँ की नादर स्टेटमेंट पर अजीज नज़रों से इन्हें देखा। समझ आई है ना क्या कह रही हूँ मैं? अपनी दोनों बेटियों की नज़रों को देखती वो बोली। और मैं किस लिए इनकार करूँगी? हाथ बांधे अदन ने सवाल किया। अदन, वो छोटा है तुझसे, तेरे ददियाल वाले बातें बनाएंगे, सोचेंगे तेरे लिए कोई और रिश्ता नहीं था जो खुद से छोटी उम्र के लड़के से रिश्ता जोड़ दिया। जीनत की अजीबोगरीब परेशानी पर इन दोनों का दिल चाहा वह सर पेड़ ले। अम्मी, पहली बात, मेरे ददियाल वालों ने मेरा रिश्ता नहीं मांगा जो वो बातें बनाएंगे, और दूसरी बात है, छोटी उम्र या बड़ी उम्र से कुछ नहीं होता। जिंदगी में दिली सुकून और इत्मीनान होना चाहिए। बड़ी उम्र के लड़के ने मेरे लिए नहरें नहीं खोदवानी। सुकून से अपनी बात कहते इसने चाय का कप मुंह से लगाया था। अगर इसने एहसान से वादा किया था कि वो अपनी अम्मी को संभाल लेगी, तो वो इसे पूरा भी कर रही थी। जिन्होंने ने चल लम्हे खामोशी से इसे देखा। हसान की मर्जी शामिल है इसमें? माँ का तफ्तीशी मूड ऑन देखते ही अदन ने गहरी सांस भरी। इधर उधर की बातें छोड़कर सीधी बात पर आते हैं। अम्मी, ये सब एहसान की मर्जी से ही हो रहा है, मामी और बीजान को बीसी ने बताया है। और तू? मैं बस इसका साथ दे रही हूँ। गजब लापरवाही थी। हुरम ने अपनी हंसी दबाई थी। अदन, माँ के भी कुछ हुकूक होते हैं, जहाँ पर जाकर आप अपने हुकूक पूरा करना चाहती हैं वहाँ मुझे मंजूर नहीं। खुदा का खौफ करे अम्मी, हमदान बड़ा भाई है मेरा, अपना जहन बदल लें अब। कप उठाती वो किचन की तरफ बढ़ी। हसान छोटा भाई ना बना, लेकिन हमदान बड़ा भाई बन गया। पीछे से आती अम्मी की दहाई पर इसने हंसी दबाई थी। कोई और वक्त होता तो वो जाने कितना सा लेती, मगर अब ठान ली थी तो हर बात नज़रअंदाज करनी थी। आपको हसान भाई नहीं पसंद? हुरम के सवाल पर जिन्होंने से देखा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि हसान ने कभी मुझे ये महसूस ही नहीं होने दिया। मुझे वो क्यों पसंद नहीं होगा? मेरा खून है वो। इतनी इमोशनल टून पर हुरम ने माँ के बदलते रंग देखे। तो फिर इनकार क्यों कर रही हैं? हैरानगी से पूछा। लोग या खुदा? रिश्ता मेरी बहन का है, मगर टेंशन आपको लोगों की है। ज़माना बहुत आगे आ चुका है अम्मी, आप भी आ जाएं अब। जीनत की बात काटी थी किताबें समेटती वो सोच में गुम जीनत को छोड़ती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। मैं अंदर आ सकता हूँ बाजी? आवाज़ पर दरवाजे में खड़े हसान की जानिब देखा, जो जरा सा सर निकाले इजाज़त मांग रहा था। आ जाओ। किताब उल्टी करके वो सीधा होकर बैठी। सरी के बाद से आप नजर ही नहीं आई, सोचा मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। इसके पास बैठता हुआ बोला था। मुश्क इसकी बात पर मुस्कुरा दी। कोई काम नहीं था इसलिए कमरे में ही रही? काम नहीं था, लेकिन घर के लोग तो है ना, आप सिर्फ खाने के टेबल पर साथ बैठती है। मुश्क ने से गौर से देखा। हसान
मेरे भाई, जो भी बात है सीधी सीधी करके अपना और मेरा दोनों का वक़्त बचाओ। वो मुश्क थी, हसन कैसे भूल गया था। गहरी सांस भरता वो पूरी तरह इसकी जानिब मुड़ा, इसके हाथ अपने हाथों में लिए थे। बाजी, मैं अदन को पसंद करता हूँ। मुश्क ने चंद लम्हे खामोशी से इसकी बात पर गौर किया। तुम अदन को पसंद करते हो? सवाल किया था। हसन ने सर इस बात में हिला दिया। मुश्क हल्का सा मुस्कुराई थी। तो तुम इतनी संजीदगी से क्यों बता रहे हो? ये तो अच्छी बात है, अच्छी लड़की को पसंद करते हो तुम। हसन का हाथ दबाया था। जवाबन वो खुलकर मुस्कुराया था। मैंने अम्मी और बीजान से बात की थी, उन्होंने दादा जान और अब्बू को भी बताया है। मेरे फाइनल एग्जाम के बाद ऑफिशियली तौर पर हाथ मांगेंगे। मुश्किल के चेहरे पर खुशी की चमक देखती हैरान और खुश दोनों ही हो रही थी। वो तो इससे छोटा सा हसान समझती थी, यहाँ तो हसान बाजी ले जा रहा था। एक शिम्मी रह गई थी, इसे बताकर मुझे बता देते, शिकवा तो बनता था। हसान हंस दिया। मैं बात करना चाह रहा था लेकिन आप नजर ही नहीं आती थी। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अदन बहुत समझदार और प्यारी लड़की है। तुम दोनों एक जैसे हो। खुश रहोगे। हाथ बढ़ाकर सान के बाल बिखा थे। मुस्कुराते हुए सान ने आगे बढ़ते बहन का माथा चूमा। मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। अपनी बात कहकर खड़े हुए वो कमरे से निकल गया था। मुझ ने किताब वापस से खोले। सामने की चंद लम्हे गुजरने के बाद वो एकदम रुकी थी। हमदान और अदन का रिश्ता दिमाग में क्लिक हुआ था। हो सकता है इसमें महज जीनत पुप्पो की मर्जी हो। कंधे जाती वो वापस किताब की जानी में तवज्जो हो गई। नगीना मामी मुश्क नजर नहीं आ रही। किचन के दरवाजे पर खड़े हुए नगीना को पुकारा था। नगीना ने मुड़कर से देखा। वो हवेली के पीछे लॉन में है। अदन मुस्कुराकर जवाब दिया, वहाँ क्या कर रही है? आज मुश्क बीबी को लॉन में इफ्तारी का दिल चाह रहा था, बस इसीलिए सबकी दौड़े लगवाई हैं। शिमी की बात पर वो हंसती हुई पिछले लॉन की जानिब बढ़ गई। टेबल और कुर्सियों पर कपड़ा फेर कर साफ करती है। अब वो खाली बर्तन लगा रही थी। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी, फिर पता चला कि बीबी आज लॉन को जला बख्श रही हैं। पीछे से आती अदन की आवाज़ पर वह मुड़ी नहीं थी। कोई जवाब ना पाकर अदन इसके सामने आई, जो संजीदगी से अपने काम कर रही थी। अदन ने आईब्रो उचाए थे। मुश्क बीबी खैरियत है? इसे खामोशी देखती वो फिर से बोली। मुश्क ने इसे देखा। तुम अगर चाहती हो कि रोज़े में मैं तुम्हें कोई गाली ना दूं तो निकल जाओ इधर से। इतना संजीदा अंदाज। लड़की, क्या हुआ है? क्या कर दिया मैंने? इसके हाथ से प्लेट लेकर टेबल पर रखती अपने सामने किया। तुमने अभी से भाभी वाले रंग दिखाना शुरू कर दी हैं, बातें छुपाने लगी हो मुझसे। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। अदन, कोई रस्म नहीं करनी है। मैंने तुम्हारी स्टार प्लस वाली नंद बनकर दिखाऊंगी तुम्हें। अब वो मजाक कर रही थी यहाँ गुस्सा अदन समझ नहीं पा रही थी। एक कहका लगाते इसने मुश्क को गले लगाया था, जबरदस्ती का गले। मुश्क ने इसके बाजू पर चित्र सीध की थी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी यार, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूंगी तुमसे। बहुत अजीब सा महसूस होता था। तुम्हें लगा था कि मैं भी दूसरों की तरह हा हा वाला हाय वाला रिएक्शन दूंगी। बहुत बदतमीज औरत हो तुम। अदन इसकी बात पर हंसी थी। अच्छा प्लीज नाराज मत हो, अब तो पता चल गया है ना? जी बिल्कुल, आपके फ्यूचर बंदे ने ही बताया है। अदन ने नाक चढ़ाया था। कितना जीव लग रहा था हसान मेरा बंदा। उफ, अब की बार मुश्क ने कहकर लगाया था, जस्ट कजन थिंग्स। मुश्क के जवाब पर इसने हाथ जलाया था। खैर आज तारी लॉन में क्यों? मौसम अच्छा था, सोचा तब्दीली होनी चाहिए। सारी प्लेटें लगा कर इसने एक नज़र टेबल को देखा। तब्दीली तो वाकई हुई है। अब क्यों हुई है ये तो मुझे बताओ। कि मुश्क ने गहरा सांस खारिज किया था। मेरे ख्याल में मुझे घर के काम नहीं करने चाहिए, तुम लोगों से तो बर्दाश्त ही नहीं होता। अच्छा इतनी अहम बात तो भूल ही गई, शॉपिंग पर कब जाना है? जब भी चलो, मैं तैयार हूँ। जवाब तो अदन जानती ही थी। चलो फिर कल डन करो, कुछ दिन है बस ईद में। मुश्किल ने सर हिला दिया था। ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। अम्मी किचन में खड़ी आग बबूला हो रही होंगी, किचन से शिमी को बुला देना। अच्छा कहती वो लॉन से निकलती किचन की तरफ बढ़ गई। मौसम वाकई बहुत अच्छा था। हल्की हल्की हवा और इस पर इफ्तार का वक़्त अलग ही समा दे लग रहा था। लॉन में टेबल के गिर्द सब बैठे एक दूसरे के साथ खुशगपी में मसरूफ थे। हमदान ने अपने सामने नगीना के साथ बैठी मुश्क को देखा। सर पर जमाए दुपट्टे को ठीक करती वो बीजान और दादा जान से बातें करती हंस रही थी। इसकी हंसी खूबसूरती या इसकी आंखों की चमक या फिर इसके लौंग नाक की लौंग। हमदान फैसला करने से कासिर था। कनाडा में रहते हुए इसे कभी कोई लड़की इस कदर पुरकशिश नहीं लगी थी। सारा काम तो बस इसे छोटी सी लौंग ने खराब किया था। काश वो इसको बता सकता कि ये लौंग इसके चेहरे पर किस कदर खूबसूरत लगती है, और ये भी कि इस लौंग के साथ तो वो खुद इसकी कितनी हसीन लगती है। काश वो इसे बता पाता कि वो शायद पहली नज़र में ही इसे कितना भागी थी। जब वो दुपट्टे से उलझती, मुंह के जावे बनाती, जब वो नींद से उठकर बाहर चली आती और हर किसी को नाक चढ़ाकर जवाब देती। काश वो इसे बता सकता कि इसे जिद्दी नकचढ़ी मुश्क ही पसंद थी। खुद पर जमी हमदान की नजर देखती इसने सबकी जानिब देखा। सब अपनी बातों में मसरूफ थे। चम्मच पकड़कर मुश्क ने जोर जोर से टेबल पर गिराया। चम्मच गिरने की आवाज पर हमदान ने सर झटकर सीधा हुआ। इसकी नजरों को देखते हुए मुश्क दुपट्टा ठीक करती नजरें झुका गई। नजरें बहुत कुछ बोलती थी, मगर दिल की बात वो दोनों जुबान पर लाने से निकारी थे।
बीजान, हमें बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है यार, क्या करती हैं आप। शॉपिंग की बात पर बीजान का मुतालबा सुनकर वो चढ़ी थी। हसन यूनिवर्सिटी ना गया होता तो मैं हमदान को ना कहती, लेकिन अकेली लड़कियों को मैं शहर नहीं भेजूंगी। ये अटल फैसला था। मुश्क ने दांत पीसे थे। अकेली कहाँ है बीजान, ड्राइवर साथ है और हमने मॉल में जाना है, वहाँ की चीज़ का डर। मॉल में जाओ या भाड़ में, हमदान साथ जाएगा। दरवाजे से आती अदन की आवाज़ पर मुड़ी। गाड़ी बाहर खड़ी है। मुतमिन बीजान पर नज़र डालती वो बैग थामे कमरे से निकल गई और गाड़ी के साथ बीजान का पोता भी गाड़ी के पास खड़े हमदान को दिखती वो बोली। अदन इसके चढ़ने पर हंसी थी। मैं ड्राइवर से कह रहा था कि वो घर पर ही रह जाए, गाड़ी में खुद ड्राइव कर लूंगा। गाड़ी का दरवाजा खोलती वो रुकी थी। गर्दन मोड़े हमदान को देखा जो इसी को देख रहा था। ये कनाडा की साफ़ सुथरी सड़कें नहीं हैं, ये पाकिस्तान की अजीम व आलीशान ट्रैफिक वाली सड़कें हैं। ईद के कपड़ों की बजाय कफन ना उठाकर लाना पड़े। हमदान ने इसकी बात पर हैरानगी से देखा था। बिना कुछ बोले कंधे कुचाता हुआ फ्रंट सीट पर बैठ गया। 3 घंटे मॉल का एक एक कोना घूमने के बाद वो तकरीबन तमाम खरीदारी मुकम्मल कर चुकी थी। अपने साथ हुर्रम और दोनों अम्मियों के अलावा बीजान की भी खरीदारी थी, जबकि मर्द हजरात की शॉपिंग हसन हमदान वीकेंड पर कर चुके थे। मेरी जान अब निकल रही है। अदन की बात पर मुश्क ने इसे देखा जो नडाल सी नजर आ रही थी। कहा भी था इफ्तारी के बाद आ जाएंगे, मगर नहीं, बीजान की कदीम रूह को कौन समझाए। मुश्क ने थोड़ा सा पीछे खड़े हमदान को देखा जो अपने फ़ोन पर कुछ टाइप कर रहा था। शक्ल से तो बिल्कुल ठीक लग रहा था, थकावट से कहीं भी आसार नहीं थे। जैसे बीजान वैसा पक्का इनका पोता। 1 मिनट के लिए साथ नहीं छोड़ा। मुश्क की बात पर अदन हंसी थी। रश देख रही हो, अच्छा हुआ साथ आ गया था, वरना धक्के खा रही होती इधर उधर। रिंग टोन पर हमदान इनकी जानिब आया। डैड की कॉल है, मैं सुनकर आता हूँ, आप लोग इधर ही रुकिएगा। फ़ोन दिखता वो खाली कोने की तरफ बढ़ा था। अदन, ख़वातीन की चूड़ियाँ तो रही गई हैं। यकदम याद आने पर वो बोली, मुझ में 2 कदम की भी हिम्मत नहीं है। ये शॉपिंग बैग्स तुम इधर ही रखो और जाकर ले आओ, मैं इधर ही बैठी हूँ। सर हिलाकर वो बैग से एक साइड पर रखती चूड़ियों के स्टॉल की जानिब बढ़ गई। कॉल बंद होने पर वो वापस इसी जगह पर आया। मुश्क वहाँ पर मौजूद नहीं थी, जबकि अदन वहीं बैठी थी। मुश्क कहाँ है, वो चूड़ियाँ लेने गई थी, अभी तक नहीं आई। मैंने बोला भी था यहीं पर रुकना, रश बहुत ज़्यादा है। फिक्रमंद लहजा था। हमने इसी तरफ चलते हैं, हम भी इसी तरफ चलते हैं, शायद रश की वजह से देर हो गई हो। हमदान ने सर हिलाया था। बैग इसके साथ थामता वो चूड़ियों के स्टॉल की जानिब बड़े। रश में मुश्क का नामो निशान दोनों नहीं मिल रहे थे। 15 मिनट स्टॉल के आसपास चेक करने के बाद हमदान अदन की जानिब मुड़ा। फ़ोन करो इसे। सर हिलाते अदन ने बैग से फ़ोन निकाल कर मुश्क को मिलाया। बेल जा रही थी लेकिन वो उठा नहीं रही थी। 3 मरतबा ट्राई करने के बाद भी वो ही जवाब मिल रहा था। अदन ने हमदान को देखते सर नफ़ी में हिलाए। हमदान ने गहरा सांस भर के एक नज़र हाथ तरफ घुमाई। तुम्हें बाहर जाने का रास्ता पता है? अदा ने इसके सवाल पर सरस बात में हिलाया था। ये बैग लेकर तुम गाड़ी में बैठ जाओ, हो सकता है रश देकर वो गाड़ी की तरफ चली गई हो, मुझे कॉल करके बता देना, तब तक मैं यहीं देखता हूँ। बैग इसके हाथ से लेती वो बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गई थी। एक मरतबा फिर वो इसी जगह पर आए जहाँ कुछ देर पहले वो तीनों खड़े थे, मगर अब वहाँ कोई नहीं था। रिंग टोन पर इसने फ़ौरन कॉल उठाई। वो गाड़ी में है, उम्मीद से पूछा गया था। नहीं भाई, ड्राइवर भी बोल रहा है वो यहाँ नहीं है। अदन के जवाब पर मजीद कुछ बोले इसने कॉल काट दिया। सर उठाकर दूसरे फ्लोर की जानिब देखा, ऊपर भी जा सकती है, खुद से कहता वो लिफ्ट की जानिब बढ़ा। दूसरे फ्लोर पहले की निस्बत कुछ पुरसकून था। शीशे के दरवाज़ों से वो एक एक स्टोर को देखता चला गया था, मगर मुश्क थी कि दिखाई देने से कासिर थी। मुश्क पर कुछ देर पहले का गुस्सा परेशानी में डर रहा था। बीजा ने एक इसीलिए तो इससे साथ भेजा था। वो वापस मुड़ने को था जब एक स्टोर के शीशे में से मुश्क के हम रंग चादर का अक्स दिखाई दिया। तेजी से कदम उठाता उसे जाने बढ़ा था। वो एक ज्वेलरी स्टोर था। दरवाजे के सामने पहुंचकर हमदान ने गहरी और पुरसुकून सांस खारिज की थी। मुश्क कुर्सी पर बैठी अपने सामने मुख्तलिफ नोज रिंग देख रही थी। सर नफी में हिलाता वो अंदर दाखिल हुआ। पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हें पूरे मॉल में ढूंढ रहा हूँ, इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठता हुआ मध्यम आवाज में बोला। मुश्क ने वो आवाज़ पर फौरन की जानिब देखा। मैं चूड़ियाँ ले रही थी तो याद आया कि नोज रिंग भी लेनी है। आपको लगा मैं गुम हो गई हूँ? कैसा पुरसकून लहजा था। हमदान का दिल चाहा कि हर चीज़ भाड़ में डालकर उसका हाथ पकड़े बाहर निकल जाए, मगर सामने भी मुश्क थी। पसंद कर ली हो तो चलें अब, अदन गाड़ी में इंतज़ार कर रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ये ज़्यादा छोटी लग रही है। भाई आप इसी साइज़ में दिखाएं जो मैंने पहनी हुई है। हमदान ने एक नज़र इसकी नाक पर सजी लोगों को देखकर सामने पड़ी लोगों को देखा। जो तुमने पहन रखी है वही ठीक है। सरसरी से अंदाज में बोलने पर मुश्किल से देखा, वो इसे नहीं देख रहा था। मैं नहीं खरीदना चाहती हूँ। अपनी बात कहती वो दोबारा से डिज़ाइन देखने में लग गई। हमदान ने एक नज़र सारे स्टोर पर डाली, वो वाली दिखाए। एक तरफ डिस्प्ले पर लगी नोजरिंग की तरफ जानिब इशारा किया था। मुश्किल ने इसकी नज़रों के समय देखा, वो डायमंड है। अगर वो इसे चांदी समझ रहा था तो गलत था। मुझे पता है। मुश्किल से देखा जो अभी छोटी सी
मखमल की डिबिया को पकड़े अंदर जगमगाती लौंग को देख रही थी। मेरे दादा ने अभी मेरे नाम को कोई ज़मीन नहीं लगाई, इसलिए फ़िलहाल मैं ये चांदी ही अफोर्ड कर सकती हूँ। सच झटक से अपनी नज़रें हीरे की लौंग से चुरा ली। पेमेंट मैं हेल्प कर दूंगा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं खरीदूंगी। इशारा हाथ में पकड़ी चांदी की लौंग की जानिब था। हमदान ने बिना किसी बहस के हाथ में पकड़ी डब्बी वापस कर दी। आप ट्राई करना चाहेंगी? शॉपकीपर के सवाल पर मुश्किल ने सर इस बात में ला दिए। मुझे इसकी पिन नहीं लगानी आती, मैं हेल्प कर दूंगा। लड़के की बात पर हमदान ने आंखें खोले इसे देखा था। इससे पहले कि वो मुश्क की जानिब हाथ बढ़ाता, हमदान ने हाथ बढ़कर इसे रोक दिया था। आप बस पैक कर दें। सहलाता वो पीछे हट गया। हमदान ने संजीदा नज़र मुश्क पर डाली थी। घर चलकर ट्राई करती रहना। इसका अंदाज ऐसा था कि मुश्क ने खामोश रहना ही बेहतर समझा। शहर से आते वो अपने कमरे में बेहोश हो चुकी थी। इफ्तारी से कुछ देर पहले ही सांड के जगाने पर वो मुंह पर पानी के छींटे मारती बाहर है। सब टेबल पर मौजूद थे। सलाम करती वो भी अपनी नशिस्त पर बैठ गई। नजर हमदान के जानिब उठी जो इसी की सुई सूरत देख रहा था। टेबल पर मुकम्मल खामोशी थी। हमदान ने गला खंकारा। डैड की कॉल आई थी आज, इन्हें वहाँ बिजनेस में मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं ईद आप सबके साथ नहीं कर सकूंगा। वो अपनी बात कहकर चुप हो चुका था, मगर मुश्क का पानी का घूंट गले से उतारना इंतहाई मुश्किल लग रहा था। बेयकीनी से हमदान की जानिब देखा। एक दो दिन से क्या हो जाना है, ईद के बाद ही जाएगा, तो अब बोल देना अपने बाप को। बीजान को हमदान की बात कतन पसंद नहीं आई थी। बीजान डैड के लिए अकेले मैनेज नहीं कर पा रहे और बिजनेस का स्टार्ट है, हमारे लिए ये दिन बहुत अहम है। आप फिक्र ना करें, सब कुछ सेटल हो जाएगा तो फिर दोबारा चक्कर लगा लूंगा। मुस्कुरा कर इनको तसल्ली दी थी। ठीक कह रहा है, वहाँ का काम का हर्ज हो रहा होगा। दादा जान की बात पर मुस्कुराया था। कब है आपकी फ्लाइट? परसों रात। हसान के सवाल पर से जवाब दिया था। परसों तो 4 रात है बेटा, एक दिन मजीद रुक जाते, हमारे ईद हमारे साथ गुजार लेते। इस मर्तबा नगीना की नरम से लहजे पर वो बेखतर मुस्कुरा दिए। वो सब इसे याद आने वाले थे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ईद की वजह से मुझे फ़्लाइट काफ़ी लेट मिल रही थी, इसलिए एक दिन पहले की करवानी पड़ी। बाकी सब पर एक नज़र डाले इसने मुझको देखा, जो सर झुकाए पानी के गिलास को थामे बजाय हर चीज़ से जान बैठी थी। वो क्या सोच रही थी? क्या इसके अचानक वापस जाने की खबर पर वो उदास हुई? सामने बैठी लड़की मुश्क थी। सर झटक कर इसने तवज्जो अपने खाने की तरफ कर दी। छत पर पड़ी महसूस चारपाई पर बैठी वो गहरी सोच में गुम दिखाई दे रही थी। या अल्लाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि वो वापस चला जाएगा। गले में कुछ अटकता हुआ महसूस हो रहा था। वो वापस चला जाएगा और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएगा, और यहाँ मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मैं पहले जैसे नहीं रह पाऊंगी। सब कुछ बदल जाएगा, एक खला आ जाएगा। सर दोनों हाथों में दिए वो रो देने के दर पर थी। मैं पागल हो जाऊंगी, मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती। रोने वाली हुई वो कदरे ऊंची ऊंची बोली थी। क्या नहीं बता सकती? आवाज़ पर मुश्क ने हथेलियों से आंखें रगड़े सर उठाया। वो दोनों हाथ ट्रैक सूट की जेबों में डाले सामने खड़े बगौर इसी को देख रहा था। तुम क्या नहीं बता सकती मुश्क? वो 2 कदम चलता वो और करीब आया। कुछ भी नहीं, गले में गोया आंसू अटके थे। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, कमरे में नहीं थी तो सोचा अदन की तरफ होगी, इसलिए बस छत पर चला आया और आगे तुम बैठी मिल गई। मुश्क ने नीम अंधेरे में से देखा। मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? ये मुझे नहीं पता। हाँ, मैं तुमसे एक्सक्यूज़ करना चाहता था। हमारी इस मर्तबा की मुलाकात अच्छी नहीं रही। उम्मीद है अगली मर्तबा तुम मुझे कत्ल करने की ख्वाहिशमंद नहीं होगी। हल्के फुल्के लहजे में कही बात पर मुश्क ज़रा से मुस्कुराई थी। हमदान करीब आते से कुछ फासले पर बैठ गया। तुम मुस्कुराती भी हो, नाइस। क्यों, मैं आपको रिबोर्ड लगती हूँ? रिबोर्ड नहीं, मगर हाँ खतरनाक लड़की ज़रूर समझा था। समझता हूँ। अपनी बात कहता हुआ मदन से हंस दिया। मुश्क ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो हंसते हुए भी इतना दिलकश लगता था। मुश्क के देखने के दौरान ही हमदानी से देखा। वो दोनों अब एक दूसरे को देख रहे थे। आंखों से होती हमदान की नज़रें इसकी लौंग पर रुकी। लौंग से होती हुई वो दोबारा वापस आंखों पर आई। तुम कुछ कहना चाहती हो? वो इससे पूछ रहा था, इसे याद करवा रहा था। इसे कुछ कहना चाहिए। हमदान मैं इसके जाने मुड़े। वो हाथ सीने पर रखे कुछ बताना चाह रही थी। हमदान ने भी रुख मोड़ा। हाँ, तुम क्या? इसकी आंखों में देखते हुए इसे बोलने पर उकसा रहा था। ज़बान पर कुछ ना आने के बाद से इसकी आंखें भरी थी। कुछ नहीं। हमदान ने गहरी सांस भरी इसकी नम आंखें देखी। जो बात भी दिल में है वो बता दो, वरना दिल में रह जाने से दिल जख्मी भी कर सकती हो। ये नामुमकिन है। भराया हुआ लहजा था। क्या नामुमकिन है? सर इसकी जानिब झुकाए से पूछ रहा था। मुश्क ने इसकी आंखों में देखा। वहाँ उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। सब कुछ अपनी बात कहती वो चारपाई से उठ खड़ी हुई। एक नज़र हमदान के जानिब डालती वो सीढ़ियों के जानिब बढ़ गई। सिर्फ एक मर्तबा कुछ बोल दो, यहाँ वापस आने के लिए थोड़ी सी उम्मीद दे दो। एक मर्तबा अपनी जिद छोड़ दो। आसमान की जानिब देखता हुआ मुश्क के ख्याल से गोया हुआ
मैं सबसे ज़्यादा आपको याद करने वाला हूँ। आप जितनी सख्त दिखती हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हैं। आप तो इतनी स्वीट सी हैं, इतनी प्यार करने वाली। बीजान की गोद में सर रखे वो मध्यम लहजे में इन्हें बता रहा था। बीजान इसके बालों में हाथ फेरती मुस्कुराती, मेरे सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। फजर भी, अगली मर्तबा फजर और अपनी माँ को भी साथ लाना। हमदान ने इनकी बात पर सहलाया था। इसे बहुत शौक है आपसे मिलने का। अगली मर्तबा सब साथ में आएंगे। हमदान बीजान के पकाने में हमदा ने नजरें उठाकर इनका शफकत भरा चेहरा देखा। जी बीजान, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी तू इस घर से जुड़ा रहे, ऐसा रिश्ता हो कि तू वहाँ का ना होकर रह जाए। बीजान की बात पर वो सर इनकी गोद से उठाता सामने बैठ गया। बीजान क्या कहना चाहती थी वो समझ चुका था। मैं इसी घर का बेटा हूँ बीजान, हमेशा इसी घर और सबसे मेरा रिश्ता जुड़ा रहेगा। हाँ मगर मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन शायद नसीब में नहीं है। असुदा से मुस्कुराहट के साथ वो इतना ही कह सका था। बीजान ने इसका माथा थाम कर चूमा। मेरा बेटा है तो सब समझती हूँ, यहाँ क्या चल रहा है। इसकी उंगली इसके सीने पर रखकर वो बोली थी। हमदान कुछ हैरान होता हंस दिया। बीजान, मैं इसे बताना चाहता हूँ लेकिन मैं इनकार से डरता हूँ। दिल में दबी ख्वाहिश तकलीफ दा इनकार से बेहतर है। बीजान इसे बकौर देख रही थी, क्या पता वो इनकार ही ना करे। हमदान खामोश हुआ था। वो मुझे इतना पसंद नहीं करती, ज़िद्दी है, अपनी ज़िद में वो ना चाहते हुए भी इनकार कर देगी। बीजा ने गहरा सांस भरा था। अल्लाह ने चाहा तो इसकी ज़िद भी कब अल्लाह ने चाहा तो इसकी ज़िद भी कुछ नहीं कर सकेगी। इनकी बात वो महज सर हिला सका था। दरमियान का एक दिन तो पलक झपकते ही उड़ा था और आज का सारा दिन वो अपने कमरे में नगीना की मदद से पैकिंग में लगा रहा। इसके अपने कपड़ों से ज़्यादा फजर और तहरीम के तोहफे थे। इस कदर सामान को देखते उसने एक लंबा सांस खींचा था। इनकार भी नहीं कर सकता था। फजर घर में ही दाखिला होने देती। एक पूरी लिस्ट वो पहले ही भेज चुकी थी। इफ्तारी के बाद फ़ौरन निकलना था। प्लीज़ एहसान से कहिएगा वो रेडी रहे, मैं तब तक शावर ले लूँ। बैग एक साइड पर रखता हुआ नगीना को देखकर बोला था। मुख्तसर था कि लेकिन बहुत अच्छा वक्त गुजारा तुम्हारे साथ, उम्मीद है जल्द मुलाकात होगी और तुम अपनी अम्मी को लाना। अब की मर्तबा पहले बीजा की नाराज़गी की वजह से मैं ठीक से बात नहीं कर सकी थी। तरीम से प्यार से बोलती वो आखिर में हंस दी। हमदान ने मुस्कुराते हुए इन्हें अपने खसार में लिया था। आपने बहुत प्यार दिया है, मॉम की कमी इतनी सी भी फील नहीं हुई। मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। बालों पर बोसा देता हुआ पीछे हटा। मैं तैयारी कर लूँ, आप एहसान को भी कह दे। इसकी बात पर सहलाती नगीना कमरे से निकल गई। छत के बाद इस बात से इसने मुझको ठीक से नहीं देखा था। वो क्यों इससे छुप रही थी वो नहीं जानता था, मगर वो इसे देखना चाहता था। आखिरी लम्हात में इसकी तस्वीर महफूज करना चाहता था, लेकिन वो थी के सामने आने से इनकारी थी। गहरे सांस भरता हुआ तौलिया बेड पर पकड़ता वॉशरूम में बंद हो गया। ना तुम्हारे आने का पता चलता था और ना ही अब जाने का, और ना मेरे घर वालों ने इतनी सी जहमत की कि कुछ ही बता दें। ज़ैनब पुप्पो को तो फिर से अल्लाह ने मौका दिया था। हमदान खसानी हंसी हंसता इनसे मिला। सब हमदान से मिले हवेली में खटे हुए थे। अचानक हुआ सब माजरत मैं बता नहीं सका। तुझे माजरत ख्वाह होने की जरूरत नहीं है, तेरी पुप्पो की पैदाइशी आदत है ये। तस्बीह फेरती बीजा ने सरसरी सी अंदाज में बोला। जहाँ सब दबी दबी हंसी हंसे थे वही ज़ैनब पुप्पो ने सर नफ़ी में हिलाया था। मजबूर थी कि सामने माँ थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी। अगली मर्तबा जब आप आएँ तो मेरी अम्मी को बलखलूस डाक भेज दीजिएगा। कसम से इतने शिकवे फोड़ नहीं होते अब। हुर्रम की बात पर सब हंसे थे। ज़ीनत अपनी छोटी लाडली को घूर कर देखा। हमदान ने बीजान की जानिब झुकते इनके सर पर बोसा दिया। बीजान की आंखें नम हुई थी। जल्दी आना, हमदान ने सहलाते इन्हें यकीन दिलाया था। मुश्क नजर नहीं आ रही थी। आवाज़ धीमी रखते इसने बीजान से पूछा। वो मगरिब की नमाज के लिए अपने कमरे में गई थी, मैं मिल आऊँ? ज़रा सा झिझकते हुए इजाज़त चाहिए थी। बीजान ने मुस्कुराते हुए सरस बात में हिलाया था। हसान, हमदान भाई को छोड़ने तुम जा रहे हो ना? अदन की आवाज़ पर ड्राइविंग सीट पर बैठे इसने खिड़की के पास खड़ी अदन को देखा। एक दिलकश सी मुस्कुराहट चेहरे पर आई थी। जी मैं ही जा रहा हूँ, मुझे कल ईद के लिए गजरे चाहिए। मेरे मुश्क और हुरम के लिए वापसी पर लेते आना। ज़रा सा खिड़की पर झुकी वो बोल रही थी। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, अनारकली बाजार थोड़ी हर जगह पर लगे होते हैं इंसान, तुम्हें एयरपोर्ट के बाहर भी मिल जाएंगे। ठीक है, मिल गए तो ले आऊँगा। इसके लापरवाह अंदाज पर अदन ने दांत पीसे थे। जानती थी वो ढूंढने की कोशिश भी नहीं करेगा। ले आना एहसान मेरे भाई। वो ओ प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत बोलिएगा, मैं ले आऊँगा। इसकी बात पूरी होने से पहले ही एहसान तड़प कर बोला था। अदन का कहका बेख्तियार था। अच्छा तरीका है बात मनवाने का, तुम ऐसे ही लाइन पर आओगे। इसकी बात पर एहसान ने आंखें घुमाई थी। इसकी ज़रूरत नहीं, आप जानती हैं मैं आपकी बात नहीं टालता। ज़रा सा खिड़की के करीब होते वो धीरे से बोला था। अदन चंद लम्हे से देखती मुस्कुराई थी। हाथ बढ़ा के इसके माथे पर आए बाल मजीद बिखार दिए थे। एहसान इसकी इस हरकत पर हमेशा हंस देता था। ये अदन की पुरानी आदत थी जो शायद कभी नहीं बदलने वाली थी।
जाए नमाज को तैयार लगाती वो मुड़ी थी जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देता हमदान कमरे में दाखिल हुआ था। मुश्किल से देखा तो वो बिल्कुल तैयार इसके सामने खड़ा था। चेहरे पर इसकी महसूस सी मुस्कुराहट थी। वो हर हालात में शायद ऐसे ही पुरसकून सा रहता था। तुम बाहर नहीं आई तो सोचा मैं खुद ही मिल लेता हूँ। दो कदम इसकी जानिब बढ़ाता हुआ बोला था, मैं बस बाहर ही आ रही थी। वो सिर्फ इतना ही कह पाई थी। 2 दिन का जब्त वो इसके इस तरह इसके सामने नहीं खोना चाहती थी। दोनों तरफ खामोशी थी। मुश्किल से देखा जो पहले से इसी को देख रहा था। मैं जा रहा हूँ, वो शायद जतला रहा था। मुश्किल ने सर हिला दिया। क्या ये नहीं हो सकता कि तुम रुक जाओ कुछ दिन और, शायद कुछ हो जाए, कुछ बेहतर। जुबान के बजाय वो आंखों से बोल रही थी। सामने वाला समझे तो तुम कुछ कहना चाहती हो। फिर से वही सवाल, तुम समझ क्यों नहीं जाती। आंखों से जवाब आया था, नहीं कुछ नहीं। जुबान पर सिर्फ यही आ सका था। हमदान ने गहरी सांस खींचते सर इस बात में हिलाया। चलता हूँ, फिर अपना ख्याल रखना, हल्की सी मुस्कुराहट से कहता हुआ एक नज़र इसकी चमकती लौंग पर डालता वापस मुड़ा। हमदान नाम की पुकार पर वो फौरन मुड़ा था। बोलो। मुश्क मुश्क अपनी जगह से हिलती ड्रेसिंग की तरफ गई थी। दराज से एक दरमियानी बॉक्स निकाल कर हमदान की जानिब बढ़ाया। ये आपके लिए। बॉक्स इसके हाथ से लेता वो हल्का सा हंस दिया। बॉक्स खोलने पर एक सिल्वर घड़ी नजर आई थी। इसकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे पसंद आई तो मैंने खरीद ली। सहलाते हमदान ने घड़ी बॉक्स से निकाल कर बॉक्स को ड्रेसिंग पर रखा। पहले से कलाई पर पहनी घड़ी को उतार कर मुश्क की जानिब बढ़ाई। मुश्क ने नासमझी से घड़ी इसके हाथ से पकड़ ली। अब वो मुश्क की दी हुई घड़ी पहन रहा था। मुश्क ने हल्की नम होती आंखों से देखा। इतने मुख्तसर वक्त में वो बहुत कुछ कर चुका था, मगर शायद इसे अंदाजा ही नहीं था ये मुझे वक्त के साथ साथ हमारी याद भी दिलवाएगी। जरा सा हंसकर वो बोला था, ये। मुश्क ने हाथ में पकड़ी इसकी घड़ी की तरफ जानिब इशारा किया था। ये तुम अपने पास रख लो। इतना सा जवाब देता वो इसकी आंखों में देखता मुड़ गया। मुश्क अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी थी। शायद इनकी कहानी बिना एक दूसरे को सुनाए ऐसे ही खत्म होनी थी। दरवाजा बंद करके वो जा चुका था। रुके हुए आंसू हमदान के जाते ही आंखों से निकलते गालों पर बहने लगे थे। हाथ में पकड़ी घड़ी को धुंधलाई आंखों से देखती वो बैठ के किनारे पर बैठ गई। चांद नजर आ चुका था। हर तरफ गहमा गहमी का समा था। नगीना और शम्मी किचन में ईद के पकवान की तैयारी में थे तो बी जान इनके पास खड़ी इन्हें हदायत कर रही थी। दादा जान और इनकी खबरें जिंदाबाद थी। एक हमदान के जाने से घर में अच्छा खासा फर्क नजर आ रहा था। सब अपने कामों में मसरूफ थे और एक वो थी जो कमरे से ही नहीं बाहर निकली थी। चांद नजर आ भी चुका था मगर इसने ना नजर आने की कसम खा रखी थी। किचन से निकलती बी जान अपनी चादर संभाले मुश्क के दरवाजे पर रुकी। अंदर दाखिल होने पर वो बेड पर उंधे मुंह पड़ी हुई मिली थी। सर हिलाती वो इसके नजदीक बैठ गई थी। मुश्क, आज चाह रहा है, तू तो इतनी तैयारियां करती थी, इस रात आज क्यों मुंह सर लपेट कर कमरे में पड़ी है। इसके बालों पर हाथ फेरती वो प्यार से बोली थी। खामोशी से रोती हुई मुश्क ने आंसू बी जान की आवाज़ पर तेजी से बहने लगे थे। बिना हरकत किए वो यूं ही पड़ी रही। उठ जा मुश्क, जो चले जाएं इनके लिए रोते नहीं हैं बल्कि अल्लाह की ईमान में देते हैं। रोते रोते वो बी जान की बात पर रुकी थी। दुपट्टे से आंसू साफ करती वो उठकर बैठी थी। आंखें मुसलसल होने के बाद सुर्ख और सूजी सी लग रही थी। बी जान ने सर नफी में हिलाए इसे देखा। अब क्यों रो रही है। दिमाग खराब है मेरा इसलिए रो रही हूँ। और रोने वाली हुई वो बोलती बी जान को हंसने पे मजबूर कर रही थी। जिद में रहने के यही नतीजे निकलते हैं। मैं जिद में थी तो चलो वो ही कुछ बोल देता, लेकिन वो क्यों बोलता, इससे क्या परवाह किसी की। वो जहां से आया था चल दिया वापस। आंखें दुपट्टे से रगड़ती वो बोल रही थी। बीजा ने हाथ नीचे किए से अपने करीब किया। बीजा के गले लगती वो फिर से रो दी। बहुत जलील और जालिम पोता है आपका। रोते हुए भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आई थी। बीजा ने इसके बालों और कमर पर हाथ फेरती से तसल्ली देने लगी। एयरपोर्ट की गहमा गहमी में खड़ा हुआ पुरसोच नजरों से आते जाते लोगों को देख रहा था। वो आ चुका था लेकिन शायद अपना बहुत कुछ पीछे इसके इस एक कमरे में छोड़ आया था। वो हल्की सी सुर्खी लिए नम आंखों की चमक और नाक की लौंग ना चाहते हुए भी इस वक्त इसकी नज़रों के सामने थी। पुकार पर वो सर झटकता हसान की जानी मुड़ा। मैं कब से बुला रहा हूँ, किधर खोए हैं आप। हसान हंसते हुए कुछ हैरानगी से पूछ रहा था। सॉरी मैंने सुना नहीं, क्या कह रहे थे तुम। आपकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है और आपको एंटर हो जाना चाहिए। हसान की बात पर घड़ी की जानिब देखा। हाँ कुछ ही टाइम रह गया, मैं चलता हूँ। आप आगे बढ़ते हुए हसान को गले लगाया। अपना ख्याल रखना और बाकी सब घर वालों का भी। हसान ने इसकी बात पर मुस्कुराते सर हिलाया था। बैग का हैंडल पकड़ते हुए एक मुस्कुराती नज़र हसान पर डाले एंट्रेंस की जानिब चला गया। आपकी फ़्लाइट 1 घंटा लेट है सर, तकलीफ की माजरत, लेकिन आपको वेटिंग एरिया में इंतजार करना पड़ेगा। काउंटर पर पासपोर्ट और टिकट दिखाने पर जो खबर मिली थी वो मजीद दिच हुआ था। बैग पकड़ता वो वेटिंग एरिया की जानिब बढ़ गया। एक माह एक सांस में गुजर गया, लेकिन ये 1 घंटा गुजरने में कई महीने लग जाएंगे। मोबाइल जेब से निकालता हुआ मुंह में बड़बड़ाया था। एक नज़र वेटिंग एरिया में दौड़ाते उसने फ़ोन की गैलरी को लेकर महसूस एल्बम पर वह तस्वीर पड़ी थी। तस्वीर को देखते ही दिल की हमवार धड़कनों में हलचल पैदा हुई थी। सीढ़ियों में बैठी वो किताब में खोई इस दुनिया से बेगानी सी लड़की लग रही थी। ये तस्वीर इसने
फ़ोन बंद होने के बाद राहदारी में खड़े होकर बनाई थी, जो हमदान 1 माह पहले कनाडा से आया था। बज़ाहिर वही हमदान वापस कनाडा जा जा रहा था, मगर दिल की दुनिया अब मुख्तलिफ थी। अब इसमें मुश्क राहिल थी। आंखों से ज़ोर से मीच कर खोलता वो गहरी सांस भरकर रह गया था। वापस जा रहा था, जाने दोबारा अब कब आता, शायद या शायद आता ही ना। वो मुश्क को कभी नहीं भूलेगा, ये तो अटल था। इसकी चमकती आंखें और इसकी मुस्कुराहट जो वो कभी कभी ही दिखती थी, और इसकी नाक की लौंग। जिंदगी में कभी कोई लड़की इसे लौंग के साथ इस कदर पुरकशिश नहीं लगी थी। वो लौंग इसका दिल धड़काने को काफी था, और इसका दुपट्टा उलझता सुलझता कभी कंधे पर तो कभी सर पर। अपनी सोच पर वो खुद ही मुस्कुरा दिया, आसूदा सा। हाँ, और इसकी नकचिड़ तबीयत को भी। वो अपने कमरे में बंद रहकर भी एक मरकजी किरदार की सी हैसियत रखती थी, किसी को चाहे इससे कोई काम हो ना हो, मगर दिन में वो 1000 मरतबा इसका नाम सुनता था, मुश्क। हाँ, इसका नाम तो वो भूल ही गया था। हमदान को इसका नाम भी याद आने वाला था, मुश्क। फूलों सी मुश्क की मुश्क। इंतजार का 1 घंटा भी मुश्क की तस्वीर देखते इसके ख्यालों में गुजर गया। अनाउंसमेंट पर वो होश में आया था, इसकी फ्लाइट का टाइम हो चुका था। मोबाइल बंद करके जेब में डाले वो खड़ा हुआ, बैग का हैंडल पकड़कर वो गहरा सांस भरता आगे बढ़ा। जेट वे की जानिब उठते हुए इसके कदम इसे भारी भारी मालूम हो रहे थे। सिर्फ चंद मिनट और फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ चंद मिनट मजीद। कदम आस्ता होते होते रुक गए थे, पर सोच नजरों से उसने आसपास देखा था। नहीं सर, नफी में हिलाते हमदान ने कदम पीछे की जानिब बढ़ाए थे। भाड़ में गया सब कुछ, लेकिन जो मेरा है इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, धीरे से खुद को कहता वो पीछे की जानिब मुड़ा। साथ वाले मैसेंजर्स ने इसे हैरत से देखा था। बैग को थामे वो तेजी से कदम उठाता रिसेप्शन में पहुंचा। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू एक्सटेंड माई फ्लाइट प्लीज। गाड़ी चलाता हुआ एक नज़र सड़क पर और एक नज़र अपने साथ बैठे हमदान को देख रहा था। चेहरे पर सवारी निशान के ढेर लगे थे, लेकिन इसकी कॉल की वजह से वो कुछ भी पूछ नहीं पा रहा था। मैं कुछ पूछ सकता हूँ अब? यहाँ हमदान का फ़ोन बंद हुआ। वहीं हसान का सवाल धमका था। हमदान इसका कंफ्यूज सा चेहरा देखता हंस दिया। तुम घर पहुंच गए थे क्या? नहीं, बस पहुंचने वाला था, आपका फ़ोन आ गया। अब आप बताएं भी, ये सब क्या हुआ? अचानक हसान की बेताबी पर हमदान ने सर हिलाता हंस दिया। अभी तो घर भी अभी तो घर भी सबका सामना करना था। मुझे बहुत ज़रूरी काम करना था हसान, जो मैं छोड़ आया था। कैसा काम? पता चल जाएगा। इसके जवाब पर हसान ने सर हिलाया था। और आरिफ ताए को क्या कहा? कुछ दिन मजीद मांग ली है इनसे। अब मुझे तजस्सुस ही रहेगा। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जिसकी वजह से आप अपनी फ़्लाइट छोड़कर आ गए? हसान की बात में हमदान ने सर झटका था। अब वो इसे बता नहीं सकता था कि वो इसकी बहन के लिए वापस आया है। घर पहुंचने पर पूरी हवेली खामोशी में डूबी हुई मिली थी। इतना वक्त हो चुका था, यकीनन वो सब सो चुके थे। गुजरों का शोपर पकड़े हसान गाड़ी से उतरा था। सब सो चुके हैं, शायद कल ईद पर सरप्राइज मिलेगा। हसान की बात पर महसूस मुस्कुरा दिया। मैं बैग कमरे में रख लो, हसान को कहता हुआ बैग का हैंडल थामे अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। हसान ने एक नज़र हाथ में पकड़े शोपर को देखा। हवेली से मुंसलिक ज़ीनत पुप्पो के घर दरवाजे पर खड़े होकर उसने अदन को फ़ोन में लाया। कॉल कट चुकी थी, मतलब वो जाग रही थी। चंद लम्हे बाद उसने दरवाज़ा खोला। सामने हंसते मुस्कुराते हसान को देखती सनफी में लाती वो भी मुस्कुरा दी। आपके गजरे शॉपर इसके जाने बढ़ाया था, फ्रीज़र में रख देते, मैं सुबह ले लेती। शॉपर इसके हाथ से लेती वो अब खोल कर देख रही थी। मैंने सोचा इसी बहाने आपको देख लूंगा, सुबह ईद है ना। शोबर में झांकती अदा ने रुकी थी। इसकी बात पर उमड़ने वाली मुस्कुराहट को बामुश्किल दबाया। क्या मतलब हुआ इस बात का? शोबर बंद करते हाथ बांधती अब वो पूछ रही थी। हसान वही खड़ा इसकी जानिब झुका। यही कि मेरे लिए चांद आप ही हैं जिसे देखकर मेरी ईद होगी। दोनों हाथ कमर पर बांधे वो इसकी जानिब झुका हुआ था। अदन ने चंद लम्हे से देखने के बाद एक जोरदार चित इसके कंधे पर रसीद की। हसान ने हैरान होते अपना कंधा थामा था। पुराना आशिक बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा भी सूट नहीं करता तुम पर। वल्लाह अदन, आप मेरे मासूम जज्बात का मजाक उड़ा रही है। मुस्कुरा दबाए से ने पूछा था, एक तुम मासूम और तुम्हारे जज्बात मासूम। सनफी में लाती वो जाने को मुड़ी थी जब हसान ने इसके दुपट्टे के पल्लू को हल्के से थामा था। अदन ने गर्दन मोड़कर से देखा था। चार रात मुबारक अदन। अब की बार मुस्कुराहट और इसके अंदाज पर अदन वापस मुड़ी, हाथ बढ़ाकर इसके बाल बखेरे थे। तुम्हें भी चार रात मुबारक। मुस्कुरा के कहती वो दरवाज़ा बंद करती घर के अंदर चली गई। इसके अंदर जाने के तक हसान वही खड़ा मुस्कुराता रहा। एक मर्तबा वो नज़रों से ओझल हुई, वो भी अपने कमरे की जानिब चल दिया। आगे वापस दरवाजे पर खड़ी बीजान की आवाज़ पर बैग खोले इसका मायना लेता वो झटके से मुड़ा। सामने बीजान का मुस्कुराता चेहरा था, जिसे जैसे कह रही हो मैं पहले ही जानती थी। आपको कैसे पता? हैरानगी से कहता वो इनकी जानी बढ़ा, बाजू कंधे पर फैलाकर इन्हें अपने साथ लगाया। मैं सब जानती हूँ, बस इंतजार कर रही थी कि किस वक्त तू वापस पहुंचेगा। वह हैरान भी था, फिर भी सर झुकाए हंस दिया। नहीं रहा गया ना? बीजान के सवाल पर वो चंद लम्हे रुका। चला जाता तो वहां ना रहा जाता। बीजान सर दाएं बाएं हिलाती हंस दी। कसम ले ले बीजान, लेकिन आपकी पोती ने कोई जादू कर दिया है। देखिए मुझे, मैं वापस इसी की दहलीज पर आकर रुका हूँ। इसके बेबसी से कहने पर बीजान ने हल्का सा कहका लगाया था। मिला है इससे? नहीं, शायद सो गई है। आज की रात भला कैसे सो सकती है? वो मुस्कुराकर कहती।
वापसी के लिए मुड़ गई। हमदान ने इनकी कही बात पर गौर किया। ओह, तो मतलब वो जाग रही होगी। वापस मुड़कर बैग बंद करता वो ड्रेसिंग के सामने से गुजरता रुका। एक नज़र खुद को देखता वो कमरे से निकल गया। स्याह तारीख आसमान और एक बारीक लकीर जैसा चांद और इसको यकटा कर देखती मुश्क। छत पर बड़ी महसूस चारपाई पर टांगे लटका कर बैठी वो गर्दन आसमान की तरफ की हुई थी। सबके कमरों में जाने के बाद वो अपने कमरे से निकली थी। जो हालत आंखों की थी वो किसी को दिखाने लायक बिल्कुल नहीं थी। अब तक जो जहाज में बैठ गया होगा, दिल ही दिल में सोचती वो फिर से रोने वाली हुई थी। नजरें झुकाकर गोद में धरे हाथों में थामी घड़ी को देखा। इसने कहा था वक़्त के साथ इसे मुश्क की भी याद आएगी, मगर वो ये नहीं जानता था कि इसे सिर्फ घड़ी पर वक़्त देखने में याद आऊंगी और मुझे वो घड़ी के हर सेकंड पर याद आएगा। मुश्क। एक मदम सी आवाज़ कानों में पड़ी थी। हाँ, ऐसे ही पुकारा था वो मुश्क को। धीरे से नरमी से दोनों हाथ चेहरे पर फेरते गहरा सांस भरा था। मुश्क फिर से आवाज़, वही आवाज़। अब की बार वो हैरान हुई थी क्योंकि आवाज़ इसे अपने करीब से सुनाई दी थी। गर्दन मोड़कर उसने अपने पीछे की जानिब देखा। वो हमदान था, इन्हीं कपड़ों में, हाथ जेब में अड़ेसे हुए। वो पुरसुकून सी मुस्कुराहट के साथ, एक तो इसकी मुस्कुराहट मुझे रुला कर जब मुस्कुराता है ना, कसम से जहर लगता है। इसी को दिखती वो खड़ी हुई। मैं तुम्हें कब से पुकार रहा था। हाथ जेबों से निकाले हुए इसके जानी बड़ा मुश्किल हल्का सा मुंह खोले सर से पांव तक इसे देखकर इसकी मौजूदगी हजम करने की कोशिश कर रही थी। इसकी खुली आंखें और खुला मुंह देखता वो सर झुकाए हंस दिया। सच में रंधी हुई आवाज़ में इसकी मौजूदगी की तस्दीक चाहिए थी। हमदान ने गौर से इसे देखा। वो रोती रही थी। इसकी आंखें और आवाज़ें बता रही थी तुम रोती रही हो। वो दो कदम मजीद इसके जाने बढ़ाता वो बिल्कुल उसके सामने रुका। आ वापस आ गए हैं। वो अभी भी वहीं पर थी। तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। चंद लम्हे वो सब कुछ भूल चुके थे। छत, रात, चांद, सब कुछ याद था। तो इतना कि वो आमने सामने खड़े थे। चंद लम्हे एक दूसरे की आंखों में देखते हुए कुछ कहने की, कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ चंद लम्हे और फिर मुझको वापस चारपाई पर बैठती, दोनों हाथ चेहरे पर रखे रो दी। हमदा ने सर नफी में हिलाया था। जमीन पर एक घुटना टेकता वो इसके सामने बैठ गया। वो अभी भी सिसकियां लेती रो रही थी। मुश्क, चुप हो जाओ, मेरी बात सुन लो। इसके कहने पर भी वो चुप नहीं हुई थी। अगर अब तुम चुप ना हुई तो मैं वापस चला जाऊंगा। हाँ, और आता ही क्या है आपको। हाथ हटाए वो जोर जोर से बोली। सुर्ख आंखें और सुर्ख नाक और इस पर छोटी सी लौंग। हमदा ने सर झटका था। इसका दुपट्टा थाम के इसके आंसू साफ किए थे। तुम इतना क्यों रो रही हो। क्योंकि मैं पागल हूँ। हाँ, वो तो हो। मुश्क ने अपने सामने और नीचे बैठे हमदान को देखा और फिर से रोने वाली हो गई थी। मेरी बात सुनो मुश्क। मुश्क ने सर हिलाया। इसको देखा। बिला आखिर मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता था। मुश्क, तुम्हें अपनी जिद अजीज तो मैं तुम्हारी जिद का मान रखता हूँ, लेकिन मैं हम दोनों को इन हालात में नहीं छोड़ सकता। मुश्किल ने पलके झपकते से देखा। मुझे कहना नहीं आता, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम ना हो तो यहाँ बेचैनी सी होती है। हाथ सीने पर रखा था। तुम्हारी आंखें और इनकी चमक और तुम्हारी मुस्कुराहट और तुम्हारी नोज रिंग, इन सब ने मिलकर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो हंसा था पराई आंखों के साथ। मुश्क धीरे से हंसती थी। हमदान ने गौर से देखा था। कभी रोते हुए हंसती थी तो कभी हंसते हुए रोती थी। शादी करोगी मुझसे। मुस्कुराहट एकदम सिमटी थी। सांस रोक किसने अपने सामने हमदान को देखा था, जो जवाब के इंतजार में इसी को देख रहा था। बोल नहीं सकती तो कम से कम सर ही हिला दो। कुछ ना बोलते देखकर वो फिर से बोला, हाँ में या ना में। वो अपनी फ्लैट छोड़कर डैड की डांट सुनकर मैं वापस तुम्हारे ना सुनने नहीं आया। मुश्क हंसी थी। तुम जल्दी हाँ नहीं कह सकती। मेरी टांगे नीचे बैठकर दुख रही हैं अब। मुश्क एक मर्तबा फिर से हंसी थी। दिलकश सी मुस्कुराहट के साथ इसने सरस बात में हिला दिया। ओह थैंक गॉड। टांगे सीधी करता वो चारपाई पर थोड़ा सा फासला रखता मुश्क के साथ बैठ गया। तो मुझे मिस कर रही थी। इसके सवाल पर मुश्क ने माथे पर सलवटे डाले से देखा। आपको किसने कहा। इस घड़ी ने इसके हाथ के जानिब इशारा किया था। मुश्क आंखें मीचती हंस दी। तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगाई। इसके खाली हाथ देखता वो बोला, आपको मेहंदी का पता है। कनाडा में रहता हूँ, मार्च में थोड़ी। आज नहीं लगा सकी, कल लगा लूंगी। इसके जवाब पर हमदान ने सर हला दिया। आज तुम मेरे जाने पर अफसरदा जो थी, अब वो इसे चढ़ा रहा था। ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं। अब वो चढ़ी नाक दिखाता वो सर पीछे गिराए हंस दिया। डेट्स लाइक माई गर्ल। गालों पर हल्की सुर्खी फैली थी। हमदान इसके गाल देखता फिर से हंस दिया। काफ़ी रात हो गई है, कल सुबह मिलते हैं। हमदान के कहने पर सहलाती वो जाने के लिए खड़ी हो गई। चांद रात मुबारक। मुझके कहने पर वो मुस्कुराया था। बिल्कुल, अब कह सकता हूँ चांद रात मुबारक।
ईद मुबारक एवरीवन। नक्सक सफ़ेद शलवार कमीज़ में तैयार वो हाल में पहुंचकर आवाज़ बुलंद बोला। बीजान के अलावा वहां मौजूद हर शख्स का मुंह खुला था। मुस्कुराहट के साथ वो आगे बढ़ता दादा जान और रेल चाचा के गले लगा। मैंने तुम्हें इस वक्त कनाडा में पहुंचाया हुआ था। नगीना को गले लगाता इनकी बात पर वो हंसा था। खैरियत थी बच्चे? फ्लाइट में तो कोई मसला नहीं आ गया था? रेल ने पूछा था। नहीं चाचा जान, बस ईद आप सबके साथ करने का दिल था, इसलिए डैड से बात करके फ़्लाइट एक्सटेंड करवा ली। ये तो बड़ी खुशी की बात है। इस बात पर रसमलाई हो जाए। दादा जान की अपनी ही दुनिया थी। चौधरी साहब अगर अगली ईद तक जिंदा रहना चाहते हैं तो सुकून से मस्जिद चले जाएं। बीजान की बात पर दादा जान के अलावा सब हंसे थे। ईद मुबारक सबको, चले नमाज के लिए चलते हैं। भागम भाग तैयारी करता हसन तेजी से बोला। सब मर्द हजरात ईद की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। मस्जिद से आने के बाद से वो मुसलसल हाल में बीजान और दादा जान के साथ था। ख्वाहिश बस इतनी सी थी कि मुश्क बीबी नजर आ जाए, मगर इतनी देर बैठने के बाद भी इसका कोई नामो निशान नहीं था। बिलाखिर खुद ही इसके कमरे में जाने की खातिर वो खड़ा हुआ। जब हंसने खिलखिलाने आवाज पर सामने देखा, क्रीम रंग की अनारकली फ्रॉक में किसी और को भले नहीं, लेकिन हमदान को वो हसीन तरीन लगी थी। पाँव से सर तक एक मरतबा तफसीली जायजा लिया गया। पैरों में खुस्सा और ऊपर लंबी फ्रॉक, कानों में झुमके और बालों का हल्का सा जोड़ा का, हाथों में मेहंदी भी थी। अब ये सब एक तरफ था और नाक पर जगमगाती लौंग एक तरफ। हमदान भाई ईदी फर्म की आवाज़ पर मुश्किल कैफियत से बाहर निकलता इसकी जानिब मतवज्जो हुआ। मुझसे कुछ कहा? मुश्क ने इसकी गाय दिमागी पर हंसी दबाई थी। हम ईदी मांग रहे हैं आपसे। आपकी बार अदन बोली थी। हाँ ज़रूर, मेरा वॉलेट कमरे में है, मैं ज़रा ले आऊँ। अपनी बात कहता मुश्क की जानिब मुस्कुराहट उछालता आंखों ही आंखों में से सराहता इसके पास से गुजर गया। मुझको अपने गाल धुआं छोड़ते मालूम हो रहे थे। सर झटकती वो बीजान और दादा जान की जानिब बढ़ गई। बीजान ने जो इस वक्त हुक्म सुनाया था, एक मरतबा सबके हवास उड़े थे। बेगम कौन से बम फोड़ रही हैं? ये दादा जानते। बम तो नहीं, बस अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रही हूँ। बीजान का पुरसुकून लहजा था। मुश्क ने मुंह खोले हमदान को देखा था, जो मजे से बीजान के पास बैठा इनकी ख्वाहिश सुन रहा था। बीजान इतनी अचानक और बच्चों की मर्जी के बगैर इतना बड़ा कदम तो नहीं उठा सकते ना। ये राहील थे जिन्हें बच्चों की मर्जियों की टेंशन पड़ गई थी। मर्जी मेरी है और बच्चे भी मेरे हैं, इन्हें कोई इतराज़ नहीं है। वाह, बीजान का कॉन्फिडेंस! सिर्फ एक दिन में कैसे तैयारियां होगी? ये नगीना थी जिन्हें तैयारियों की टेंशन पड़ चुकी थी। हमने कौन सी कोई बहुत बड़ी तकरीब रखनी है? घर वालों के अलावा जिनत और बच्चियां होंगी, इसके अलावा चंद लोग, और बस एक नज़र सबके हैरान और परेशान और खामोश चेहरे देखती वो सर नफ़ी में हिलाती सीधी हुई थी। ने मुझ आरफ ने मुझसे मुझका हाथ मांगा है और अपने बेटे के लिए, और मैं इनकार नहीं कर सकी। कोई जवाज़ ही नहीं बनता। अब जबकि हमदान मजीद कुछ दिन रुकेगा तो मैं ने फैसला कर दिया है कि कल ही निकाह की रस्म अदा कर दी जाएगी, ताकि हमदान वापस जाकर मुझ के कागजात बनवा सके। अब की बार तफसीली फैसला सुनाया गया था। मैं ठीक ना मैं ठीक ना कहती थी कि ये मेरे घर वाले नहीं हैं, मैं किसी गलत जगह पर आ गई हूँ। ज़ीनब फूफो की आवाज़ पर सब इनकी जानिब मुड़े, जो ग़ालिबन बीजान की बात सुन चुकी थी। बीजान ने आंखें घुमाई थी। अदन और हरम की एक्साइटमेंट देखने वाली थी, बस नहीं चल रहा था कि चीखने लग जाती। हमें खुद अभी पता चल रहा है यार फूफो। हसन जीनत को देखता हुआ बोला। ज़ीनब फूफो सिर्फ सर झटकर रहेगी। मेरे पास सिर्फ यही एक नया जोड़ा था जो मैंने आज पहन लिया, मैं कल क्या पहनूंगी? अपना जोड़ा दोनों हाथों से थामे वो रोने वाली हुई थी। सबकी अलग अलग टेंशन थी, जिनमें मुश्किल टेंशन सबसे मुख्तलिफ थी। हमदान ने सर नफ़ी में हिलाते मुस्कुराहट दबाई थी। दूसरी मर्तबा पहनने से गुनाह हो जाएगा, बीजान बोली थी। मैं अपनी ज़ाती निकाह पर पहले से पहना हुआ जोड़ा पहनूंगी। अगर ये मसला है तो हम निकाह शाम में रख लेते हैं, ईद का पहला दिन है, और वैसे भी कौन सा लंबा चौड़ा काम है, सिर्फ निकाह ही तो पढ़वाना है। दादा जान ने आसान सा हल पेश किया था। हमदान का दिल चाहता वो दादा जान को पूरा डब्बा मिठाई का खिला दे। जिंदगी में पहली मर्तबा कोई काम की बात की है चौधरी साहब ने। बीजान की बात पर सबकी दबी दबी हंसी छूटी थी। हसान और राहील, तुम दोनों जाकर मिठाई ले आओ। नगीना, तुम और जीनत किचन का काम देखो, और लड़कियों तुम सब निकाह के लिए जो थोड़ी बहुत सजावट है वो देख लो। सबको हुक्म सुनाती वो टेक लगाए सुकून से बैठ गई। मुझको सबसे पहले अपना जोड़ा बदलने के लिए भागी थी। शाम तक वो इसे ख़राब नहीं कर सकती थी। मुझे गाड़ी मिल सकती है? सबके जाने की सबके जाने के बाद वो हसान की जाने मुड़ा। हाँ, आप मेरी ले लें, मैं अब्बू के साथ जाऊंगा। वैसे किधर जाना है आपने? यहीं बस थोड़ा सा काम है। गाड़ी की चाबी हसान से लेता वो बीजान को अल्लाह हाफिज बोलता बाहर की जाने बढ़ गया। मुश्कबाजी, लगता है आपने ताक रातों में अपनी शादी की ही दुआ मांगी थी। मुझका दुपट्टा बेड पर फैलाती वो ड्रेसिंग के सामने तैयार होती मुझको दिखती बोली, सिर्फ शादी नहीं, हमदान भाई से शादी। अदर ने आंख दबाई थी।
میں نے ایسی کوئی دعا نہیں کی اور ہمدان کے نام سے تو بالکل نہیں، بس اللہ کو مجھ پر لاڈ آ گیا ہے۔ تائشی انداز میں وہ بولی تھی۔ عدن نے اسے دیکھا، وہ ہلکی پھلکی سی تیاری کے ساتھ بھی پیاری لگ رہی تھی۔ بالوں کے جوڑے میں اب سفید موتی کے پھولوں کا اضافہ ہوا تھا۔ اچانک نکاح کا روپ چڑھ گیا تھا۔ اللہ تمہیں ہمدان بھائی کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ دوپٹہ اس کے سر پر پھیلاتی وہ پیار سے بولی، شکریہ، اور تمہیں بھی۔ حسان کے ساتھ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولنے پر عدن نے ہلکا سا تھپڑ اس کے کندھے پر رسید کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمدان بھائی نکاح سے بھاگ گئے ہیں، صبح کے بعد نظر ہی نہیں آئے حویلی میں، اور اب وہ بھاگ کر چاہے کینیڈا بھی چلا جائے اس کے پیچھے پہنچ جاؤں گی۔ کھڑی ہوتی وہ بولی۔ حرم نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ واہ باجی، عید بھی اور نکاح بھی ایک جوڑے میں ہی، کام ختم، بچت۔ عشاء کی نماز کے بعد ان کا نکاح ہو چکا تھا اور اس وقت وہ اپنے خاندان کے نرغے میں بیٹھے تھے۔ ہمدان کے گھر والے بھی ویڈیو کال میں نکاح کے وقت ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ فجر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاتی۔ ہمدان نے ساتھ بیٹھی مشک کو دیکھا جو چہرے پر تھکاوٹ کے آثار لیے ان سب کا ساتھ دے رہی تھی۔ آج کا دن واقعی تھکا دینے والا تھا، پہلے عید اور پھر اچانک نکاح، لیکن ان سب کے علاوہ آج کے دن سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ اب سے ساتھ تھے۔ خود بجمی ہمدان کی نظریں محسوس کرتی مشک نے بھی اسے دیکھا۔ وہ مسکرایا تھا۔ تھک گئی ہو؟ دھیرے سے پوچھا۔ تھوڑا بہت، مشک نے جواب دیا تھا۔ ہمدان سر ہلاتا اپنی دوسری سائیڈ پر بیٹھی بی جان کی جانب مڑا۔ بی جان، اب اینڈ کرتے ہیں، کافی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ بی جان نے اسے دیکھتے سر اس بات میں ہلایا۔ چلو جی، کافی شغل میلہ ہو گیا ہے، سب تھک چکے ہوں گے، آرام کر لیں۔ اب کل بھی عید کا دن ہے، کل پھر مل کر بیٹھیں گے۔ بی جان کے حکم پر سب جانے کے لیے کھڑے ہوئے، جن میں سرفہرست مشک بی بی تھی۔ سر پر ٹکا دوپٹہ سنبھالتی وہ جمائی لیتی کھڑی ہوئی تھی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، میں نے اپنا نکاح بہت انجوائے کیا۔ وہ مشک بی بی تھی اور اس کی ہر بات ہی نرالی تھی۔ ہمدان ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ سر نفی میں ہلا کر رہ گیا۔ عدن اور حرم کی مدد سے نکاح کی تیاریوں میں اپنے کمرے کا بگڑا حشر ٹھیک کروا کر وہ ان کے جانے کے بعد ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی تھی۔ جوڑے میں سے موتی کے پھول نکال کر سامنے رکھے جو اب قدرے خشک ہو چکے تھے۔ جوڑے میں سے ایک ایک کر کے پی نکال کر مشک نے بالوں کو ہاتھ کی قید سے آزاد کروا کر کمر پر کھلا چھوڑ دیا۔ ہاتھوں سے چوڑیاں اور دیگر تھوڑی بہت جوڑی اتار کر وہ جوڑا بدلنے کے لیے اٹھی۔ واش روم کی جانب قدم بڑھائی تھی کہ کمرے میں ہلکی سی دستک کے بعد ہمدان داخل ہوا۔ مشک نے اس کے چہرے پر کھلی مسکراہٹ بڑے غور سے دیکھی تھی، کچھ پا لینے کے بعد کی مسکراہٹ۔ تم ایزی ہو؟ مجھے بس تھوڑا سا کام تھا۔ دروازے پر ہی ٹھہرے اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، ہاتھ میں پکڑے کپڑے واپس بیڈ پر رکھتی اس کے جانب بڑھی۔ میں ایزی ہوں، آپ اندر آ جائیں۔ سب سے پہلے تو تمہیں عید مبارک بھی اور نکاح کی بھی مبارکباد۔ دروازہ بند کرتا وہ کمرے کے وسط میں اس کے بالکل سامنے رکا۔ مشک ہنسی تھی۔ آپ کو بھی بہت مبارک، اور وہ سب سے پہلے تو آپ میری عیدی نکالے۔ دایاں ہاتھ اس کے جانب بڑھایا تھا۔ ہمدان نے مسکراتے والیٹ جیب سے نکال کر مشک کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ میں اس میں موجود سب کچھ لے لوں گی۔ جب یہ بندہ نہ چیز تمہارا ہے تو وہ پھر والیٹ کیوں نہیں؟ ہلکا سا کہکا لگا کے اس کے ہاتھ سے والیٹ لیتے وہ بیڈ پر رکھا۔ میں نے کچھ سوالات کرنے ہیں آپ سے۔ ہاتھ باندھے وہ ہمدان کو دیکھتی گویا ہوئی ماتھے پر بل ڈالے۔ ہمدان نے مصنوعی پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں جوابات کے لیے تیار ہوں۔ بیڈ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ ہمدان نے بیٹھنے پر وہ بھی اپنی جگہ سنبھال گئی۔ یہ سب اچانک کیسے ہوا؟ مطلب رشتے کی بات، نکاح وغیرہ؟ اس کے سوال پر ہمدان کے لب ذرا سا مسکرائے تھے، اور یہی سوال کی امید کر رہا تھا۔ تم سے پوچھنے کے بعد میں نے ڈیڈ سے بات کی تھی اور انہوں نے بی جان سے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ ہمدان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ تو خوش تھے کہ ان کا بیٹا کینیڈا کے کسی گوری سے شادی کرنے کے بجائے ان کی اپنی بھتیجی سے شادی کا خواہشمند ہے۔ مشک مسکراتی تھی۔ دوسرا سوال ہمدان نے پوچھا۔ فجر سے بات کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ آپ کو یہاں ایک سٹون نے اٹریکٹ کیا ہے۔ اب کی بار وہ کھل کر ہنسا تھا۔ تو تم مجھے سن رہی تھی؟ آواز کانوں میں پڑ ہی جاتی ہے۔ اب وہ پھر سے ہنس دیا۔ ہاتھ بڑھا کے اس کی ناک کی لونگ کو چھوا۔ اس سٹون کی بات ہو رہی تھی۔ مشک نے آنکھیں کھولے سے دیکھا۔ میری نوز رنگ نے تم بہت خوبصورت لگتی ہو۔ اس کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ مشک چند سیکنڈز اسے دیکھتی مسکرا دی۔ آپ آج سارا دن کہاں تھے؟ اس کے سوال پر ہمدان نے پاکٹ سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ ڈبیا کھول کر اس کے سامنے کی تھی۔ کچھ لمحے کے لیے مشک کا منہ کھلا تھا۔ یہ تو وہی نوز رنگ ہے نا؟ ڈبیا اس کے ہاتھ سے لیتی وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ ہاں وہی۔ مشک کے آنکھوں کی چمک دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ آپ یہ لینے شہر گئے تھے؟ بالکل۔ ایک منٹ، آج تو عید تھی، شاپ تو یقیناً بند ہوگی۔ ہمدان نے اس کی بات پر گہرا سانس بھرا تھا۔ میں نے مال کے مینیجر سے اس شاپ کی ڈیٹیل لے کر اس کے مالک کو فون کیا تھا۔ دیر بھی اسی وجہ سے ہو گئی۔ وہ عید کے دن آپ کی کال پر آ گیا تھا۔ اس کا ایک ڈائمنڈ سیل ہو رہا تھا، کیوں نہ آتا؟ مشک نے ہنستے ہوئے سر ہلا دیا۔ اب تمہارے سوال ختم ہو گئے ہوں تو لگا کر دکھاؤ۔ نوز رنگ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ ہاں ضرور۔ پن لگانے
میں مدد کیجیے گا۔ بیڈ سے اٹھتی وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ پہلے سے لگائی نوز رنگ کو اتار کر نیچے رکھتے اس نے ڈبیا سے جگمگاتی ہیرے کی نوز رنگ نکالی تھی۔ ہمدان بھی کھڑا ہوتا اس کے نزدیک آیا تھا۔ نوز رنگ ناک میں ڈالتی وہ اس کی جانب مڑی، پن تھام کر ہمدان نے اسے بند کیا تھا۔ ایک مرتبہ شیشے میں اپنا عکس دیکھتی وہ ہمدان کی جانب مڑی، حسین مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے پر چمکتی لونگ دیکھی۔ ہمدان کی آنکھوں کو بھلی سی لگ رہی تھی۔ آگے بڑھے اس نے لونگ کی جگہ پر نرمی سے بوسہ دیا۔ مشک کی سانس ایک لمحے کو تھمی تھی۔ گالوں پر سرخی پھیلتی دیکھ کر ہمدان سر گرائے ہنس دیا۔ تم شرماتی ہوئی عجیب سی لگتی ہو۔ عجیب مطلب اچھی نہیں لگتی؟ مشک نے فوراً پوچھا تھا۔ اچھی لگتی ہو، مختلف بھی، تم جیسی بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، مجھے حد سے زیادہ اچھی لگتی ہو، چاہے پھر تم نیند سے جاگی ہو یا پھر تم اپنے دوپٹے کے ساتھ لڑ جھگڑ رہی ہو، بس میرے دل کو اچھی لگتی ہو۔ مشک کی شانوں سے تھامتا وہ مدھم سے لہجے میں بول رہا تھا۔ مشک اس کی ساری باتیں سنتی مسکراتی ہاتھ بڑھا کر ہمدان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ شکریہ، یہ صرف لونگ کے لیے نہیں، یہ ہر ایک چیز کے لیے تھا جو ہمدان نے اس کے لیے کیا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے تھام کر ایک ایک کر کے اس کی ہتھیلی کو چومتا وہ اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ تمہارا شکریہ۔ ایئرپورٹ کی رونق میں وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ ہمدان نے اس کے ہلکی نم آنکھیں دیکھتے سرنفی میں ہلایا تھا۔ رو کر مجھے ٹارچ مت کرنا، میں سارا رستہ پھر بے چین رہوں گا۔ مشک کے ہی دوپٹے کے پلوں سے اس کی آنکھیں صاف کی تھی۔ واپس کب آئیں گے؟ یہ سوال وہ کئی مرتبہ سن چکا تھا۔ جب تم بلاؤ گی آ جاؤں گا، نرمی سے جواب دیا۔ مشک نے منہ بنائے اسے دیکھا۔ ہمدان نے گہرا سانس بھرا تھا، اس کا چہرہ تھامے بالوں کو چوما۔ میرے بھائی، اگر اب موڈ چینج ہوا تو ذرا جلدی بتا دینا تاکہ میں زیادہ دور نہ جا سکوں۔ حسان کی آواز پر وہ دونوں مڑے تھے۔ اب نہیں ہوتا، اب واپس اپنی دلہن کو لینے آؤں گا۔ مشک کو دیکھتا وہ پیاس سے بولا۔ اناؤنسمنٹ پر وہ دونوں سے ملتا جانے کے لیے مڑا۔ میں انتظار کروں گی۔ مشک نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں واپس آؤں گا۔ اس کا ہاتھ دباتا ایک بار پھر ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتا وہ مڑ گیا۔ مشک نے مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتے دیکھا تھا۔ اس مرتبہ وہ جدا ہو رہے تھے دوبارہ ملنے کے لیے۔